امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد صحافی اور کالم نگار جمال محسن کے کالمز کے مجموعے امریکہ میں دائمی دھرنا کی تقریب پذیرائی آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں منعقد ہوئی۔ آئیے آپ کو اس تقریب میں لے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے دوست جمال محسن کی کتاب امریکہ میں دائمی دھرنا کی تقریب پذیرائی میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور جو مہمانان گرامی ہیں آج کے اور جو اس تقریب میں اپنے مضامین پڑھیں گے یا خطاب کریں گے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں۔ جناب محمود احمد نعیق، ڈاکٹر اقبال محسن، جناب آصف انصاری، محترمہ عمیرہ اطہر، ڈاکٹر فاطمہ حسن، طارق محمود میاں، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی نیلوفر عباسی، اور آج کی تقریب کے صاحب صدر جناب رفیع الدین راز، آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں جناب جمال محسن سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں اور اپنی نشست سنبھالیں۔ جناب جمال محسن صاحب کتاب امریکہ میں دائمی دھرنا، آج بہت عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ پروگرام کے آغاز کے لیے میں درخواست گزار ہوں جناب ساجد سلاوٹ سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کا آغاز کریں۔ جناب ساجد سلاوٹ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کا بابرکت آغاز ہو چکا ہے۔ تقریب کے آغاز میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب محمود احمد نعیق صاحب کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتاب سے جو رشتہ مصنف کو ہوتا ہے ویسے ہی رشتہ قاری کا ہوتا ہے، اور اگر قاری اچھا ہو تو کتاب کی خوبیوں میں بھی چار چاند لگ جاتے ہیں۔ محمود احمد نعیق سے جو ہمارا تعارف ہے وہ ایک بہت اچھے قاری کے ہیں، اور یقیناً آپ جب وہ ان کی گفتگو سنیں گے اس کتاب کے بارے میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتاب کتنے دماغ سے پڑھتے ہیں اور کتنی توجہ سے پڑھتے ہیں۔ ان کے پاس تو بہت اچھا کلیکشن ہے کتابوں کا، جس کا ہم خود ذاتی طور پہ گواہ ہوں۔ آج جمال محسن کی تصریف امریکہ میں دائمی دھرنا کی رہنمائی کی ہے۔ جمال محسن سے ہمارا تعلق نصف صدی سے زائد کا ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ ان کی تحریری صلاحیت پر گفتگو کرنے کے لیے بڑے بڑے ادیب، صحافی اور مانے ہوئے اہل قلم موجود ہیں، اس لیے میرے لیے اس بات میں نظم بجائے صورت کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ہمارا تعلق ادب سے بالکل نہیں ہے، ہاں بے ادبی زبان کے اندر اس میں ہمارے کنٹری دونوں مقام میں بج رہے ہیں اور تمام احباب اس پر اتر رہے ہیں۔
میں جمال مسجد کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کوئی بیان کرنا چاہتا ہوں. ان کا خاندان 1959 میں شیخ آباد میں آ کر آباد ہوا. اتفاق سے ان کی برابر کی گلی میں چند سال قبل سے ہم مراجمان تھے. صرف ایک گلی کا فرق تھا، لیکن جو کہا جاتا ہے کہ بات ایک گلی کی تھی، گلی گلی گئی. تو اس کی اپنی تعبیر آج نظر آ رہی ہے. کراچی سے نیو یارک تک ان کی تحریروں کا ڈنڈا بج رہا ہے. 6 بھائی بہنوں میں جمال محسن سب سے چھوٹے، سب سے بڑے سبیر محسن 2014 میں حیدرآباد پیارے ہو گئے. وہ کراچی ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر تھے. شاید وہ کچھ اور کہہ رہا ہوں، لیکن وہ چیف ایگزیکٹو تھے کراچی ریڈیو کے. ان کی تحریر کرتا کئی کتابیں ہیں، لیکن میں ان کی یادداشتیں داستان کہتے کہتے بہت معروف. جمال میاں نے میٹرک پاس کرتے ہی اس قلم کے میدان میں قدم رکھا. شاعر کہہ گیا ہے، وہ میرا پہلے پہلو داخل زندہ ہونا. تو ریڈیو کا رسالہ تھا اہم، جو ایک زمانے میں بہت مقبول ہوا. اس میں شاعروں اور ادیبوں میں انٹرویو جمال میاں تحریر کرتے تھے. اس کے بعد دیگر رسالوں میں ان کی تحریریں سامنے آئی. اخبار جہاں، اخبار خواتین اور روزنامہ حریت میں، اور جس کا تذکرہ کتاب کے پیش لفظ میں درج کیا گیا ہے. ایک تنظیم تھی اس زمانے میں 48-50 سال پہلے، بزم خیام، یہ اس کے روح رواں تھے. اس تنظیم کے تحت مختلف شاعروں کے ساتھ شام منایا کرتی جاتی تھی. ایک تقریب کا میرے ذہن میں خاکہ موجود ہے. وہ تھی ریڈیو کے معروف اور نثری شاعری کے ابتدائی لوگوں میں قمر جمیل صاحب کے اعزاز میں تھی. جمال محسن یونیورسٹی میں داخل ہوئے تو سیاست کے کوچے میں بھی داخل ہوئے اور اس زمانے میں شعبۂ صحافت کے نائب صدر منتخب ہوئے. لیکن یہ سیاست کا خمار بہت جلد کافور کی طرح اڑ گیا. وجہ یہ تھی کہ بہتر طالب علم امریکہ روانہ ہو گئے. وہاں جا کر حصول علم میں مصروف ہوئے گئے. ساتھ ہی ایک امریکی ہم جماعت طالبہ کی زلف گراگیر کے اسیر ہو گئے اور بہت جلدی شادی بھی کر لی. زلف کا تذکرہ تو ہم نے کہاوت کے طور پہ استعمال کیا ہے. معلوم نہیں ان کی اہلیہ کی زلف تھی یا مردانہ بوائے کٹ میں ہی جمال میاں دل و جان نچھاور کر گئے. جمال میاں کی شاعر کہہ گیا ہے کہ یا اپنا گرما چاک یا دامن یزدان چاک. لیکن ان کی وابستگی میں دونوں میں سے کوئی بھی کسی کا بھی سامنا نہ ہوا. اس لیے اور وہ خاتون پکے ہوئے پھل کی طرح ان کے پہلو میں آ گری. غالباً 42 سال ہو گئے ہیں. ایک بیٹا اور ایک بیٹی دنیا میں آ چکے ہیں، لیکن چاہت کا یہ جذبہ قائم ہے. شاعر کا کہنا ہے، مصرع ہے کہ لیکن تیری یاد تیری دید سے غافل نہیں رہا. اسی طرح جمال میاں بس تو گئے وہاں، لیکن اپنے ملک اور اپنی ملکی روایت سے غافل نہیں رہے. نیو یارک میں اعلیٰ پیمانے پر یوم پاکستان منانے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی حب الوطنی کی دلیل ہے. کہتے ہیں چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے. یہ بقول ذوق چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. ایک مثال میں تشبیہ چور سے دی گئی ہے اور دوسرے میں بادخار سے. اب آپ ہی فیصلہ کریں دونوں میں کون بہتر ہے. یقیناً چور والی ہی بہتر ہوگی اس سے کہ غالب کہہ گئے ہیں کہ تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا. سو جمال میاں کے اندر اس کیڑے نے انگڑائی لینا شروع کی اور نیو یارک میں شائع ہونے والے مقامی اخبارات میں ان کے کالم 25 سال یا کوئی زائد سے شائع ہو رہے ہیں. گزشتہ 5 سالوں میں 2 کتابیں آئیں، لیکن وہ ان کی پیشہ ورانہ زندگی سے متعلق تھی، جسے انہوں نے نام دیا تھا باتیں پیسوں کی. برسوں بعد جمال میاں اپنے اصل میدان کی طرف رنگوٹ کس کر آگے ہیں. طنز مزاح سے بھرپور مضامین کا مجموعہ امریکہ میں دائمی دھرنا آپ کے سامنے ہے.
इसे पढ़िए और लुत्फ लीजिए। धरना कुछ पहले अरसे तक एक मनफी इस्तिलाह थी। अमूमी तौर पर बिन बुलाए मेहमान जो लंबे अरसे तक मेज़बान के सीने पर मुंह दलते रहे, उनके लिए कहा जाता है। और कहा जाता था कि यार मेहमान तो 1-2 दिन का होता है, लेकिन वो तो धरना डालकर बैठ गए। पिछले 7-8 साल से इसके मानी बदल गए। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इस्लामाबाद में 126 दिनों का धरना दिया था। वो धरना एक मेला था जिसमें शाम से रात गए तक नाच गाना सब शामिल होता था। एक नाम नहाद मजहबी कायद ने उसे मुजरा से तशबीह देकर अपनी जहनीत की अक्कासी की। दूसरा धरना मजहबी व सियासी जमात के कराची के नाज़िम हाफिज़ नईमुर रहमान ने सिंध असम्बली के सामने अपने मुतालबात के लिए दिया। सिंध हुकूमत ने क़वानीन में तब्दीली करके बल्दियाती नुमाइंदों के हुकूक सल्ब कर लिए थे और नाज़मीन और उनकी पूरी काबीना को तस्वीर बनवाने के अलावा कोई काम न छोड़ो। सिंध में जालों की हुकूमत थी और वो जो कहावत है हलवाई की दुकान पर दादा की फातिहा की अमली ताबीर रोशनास करा दी गई। भला 42 अरब के बजट से दस्तबरदार होना आसान नहीं होता। खुशकिस्मत से 29 दिनों का धरना कामयाब हुआ और एक मुआहदे के तहत ये अख्तियारात वापस कर दिए गए। लेकिन 2 साल से ये इंतखाब मुसलसल मुलतवी हो रहे हैं। खैर, अब 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। देखें क्या गुजरे है कतरे के गोहर होने तक। जमाल मोहसिन ने इस किताब का नाम दिया है अमेरिका में दायमी धरना। धरना तो मुख्तसर अरसे या लंबे अरसे के लिए क़याम कहा जाता है, लेकिन उन्होंने उसके साथ दायमी मिलाकर हिजरत का मुतबादिल लफ्ज़ रोशनास कराया है। हम उनकी इस नई इस्तिलाह पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी वारदातें वो करते रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। जमाल मोहसिन साहब के खानवादे का जिक्र हो तो सबसे पहले जहन में सभी मोहसिन साहब का नाम आता है। सभी मोहसिन साहब आहम के मुदीर थे और उसके बाद उनकी याददाश्तें भी पहले एक्सप्रेस में और फिर वो किताबी शक्ल में शाये हुई। बहुत अच्छे मुतरजिम थे, आज हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन आज हमारे दरमियान डॉक्टर इकबाल मोहसिन मौजूद हैं जो कराची यूनिवर्सिटी के शोबे अर्दियात से वाबस्ता रहे और उसके बाद जामे उर्दू के वफाकी उर्दू जामे उर्दू के वाइस चांसलर के अहदे पर फायद हुए। और उनको शायद याद ना हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने एक सेमेस्टर उनके शोबे में पढ़ा था, शोबे अर्दियात में। और एक दिन क्लास में, एक तो वो क्लास शोबे अर्दियात की क्लास, उसमें जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती थी वही समझ में नहीं आती थी। फिर लेक्चर भी पूरा अंग्रेज़ी ज़बान में होता था, तो मैं लेक्चर सुनते सुनते तकरीबन सो गया। तो अचानक एक चाक मेरे चेहरे पे आगे लगी और वो इकबाल मोहसिन साहब क्लास ले रहे थे और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ना मुझे क्लास से बाहर जाने के लिए कहा, ना कुछ जागने के लिए कहा, बस सिर्फ अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए उन्होंने मुझे एक चाक का टुकड़ा मारा। तो ये मुझे इकबाल मोहसिन साहब की याद मेरे जहन में है। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस किताब के बारे में गुफ्तगू करें। डॉक्टर इकबाल मोहसिन। सबसे पहले तो अकील अब्बास साहब ने जो तारुफ कराया है उसका शुक्रिया। जमाल मियाँ बिरादर खुर्द हैं, लेकिन किसी खसारे में नहीं। लाडले थे मगर बिगड़े नहीं। सामरे तो थे ही, मगर उसके बाद अमरीकी पाकिस्तानियों का बुढ़ापा संवार रहे हैं इंश्योरेंस की सहूलत मुहैया करके। काम आना और काम निकालना, इन्हें दोनों पर दस्तरस हासिल है। सहाफ़त में एमए के बाद अंग्रेज़ी अदब में मास्टर कर रहे थे और देश के सहाफ़ती उफ़क़ पर उभरता हुआ सितारा थे। शहजादों की सवारी होंडा 50
हवा के दोष पर उड़ते फिरते थे। पर एक दिन जी में कुछ ऐसी आई कि सहाफ़त त्याग, हुंडा फरोख्त, पाकिस्तान खैरबाद और चौथे घूंट की तलाश में चल निकले। भाइयों ने रोका नहीं, उन्होंने पूछा नहीं। सफ़र की कठिनाइयाँ और हज़र के मामलात, अकेली जान, रास्ते अनजान, मगर बेखतर अमेरिका की राहनाइयों में कूद पड़े। जब ज़िंदगी की बाग कदरे हाथ आई तो फिर सहाफ़त की उमंग जाग उठी और कालम लिखने लगे। यही कालम है जो आपको यहाँ खींच लाए हैं। आप इन्हें पढ़िएगा तो कहिएगा, ख़त उनका बहुत खूब, इबारत भी बहुत अच्छी, अल्लाह करे हुस्न रकम और ज़्यादा। शायर ने तो हुस्न रकम कहा था, लेकिन ज़बान ज़दे आम है ज़ोर कलम। अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। जमाल के लिखने दिखाने के अभी बहुत दिन और हैं और मेरी दुआ है कि उनकी मज़ीद किताबें पढ़ने को मिलें। ई दुआ आज़मान व जुमला जहां आमीन बात। ये दुआ तो मेरी है, मगर पूरी दुनिया इस पर आमीन कहे। बहुत शुक्रिया। इकबाल मोहसिन साहब ने बहुत इख्तिसार से काम लिया। मुझे वो पेट्रोस बुखारी का वाक़या याद आ गया कि जब वो उन्होंने बार बार अपने छोटे भाई ज़ाहिर बुखारी को किसी काम के लिए अंदर बाहर भेजा, तो किसी ने फिक्रा का था महफिल में कि सकबाश बरादर खुर्द मबाश, तो बुखारी साहब ने उसमें इस्लाह की सकबाश बरादर सक मबाश। बहुत ही इख्तिसार से काम लिया डॉक्टर इकबाल मोहसिन साहब ने। और अब मेरा ख्याल है इसका इजारा करने के लिए तशरीफ लाएंगे आसिफ अंसारी साहब। आसिफ अंसारी साहब से भी मेरा कोई 30-35 साल पुराना ताल्लुक़ है। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोड्यूसर रहे, उसके बाद ये प्रोग्राम मैनेजर के अहदे तक पहुँच के वहाँ से रिटायर हुए और मुस्तकिल आर्ट्स काउंसिल में भी फाल रहते हैं और लिखने पढ़ने की शक्ल से। ये शायद वाहिद प्रोड्यूसर थे पाकिस्तान टेलीविज़न के जिनके कमरे में एक मुकम्मल लाइब्रेरी मौजूद थी। जनाब आसिफ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन साहब के बारे में कहना कुछ मुश्किल नहीं है, इसलिए कि मैं इनके बड़े भाई सभी मोहसिन साहब को अच्छी तरह जानता हूँ और जितना काम उन्होंने किया है वो सबके सामने है कि उन्होंने एक किताब जो ऐसी मुस्तरद सी लिखी है जिसमें रेडियो की पूरी तारीख समझ में आ जाती है। तो मोहसिन साहब ने ये धरना जो दिया अमेरिका में जाके, न्यूयॉर्क जैसी जगह पे, जो कि जीता जागता शहर है, दिन रात जागता है, और सेंट्रल पार्क पे हो, आप कहीं भी हो, टाइम्स स्क्वायर पे हो और किसी जगह पे हो, तो आप इनकी जो किताब है उसके अंदर इनकी अमेरिका का थोड़ा सा आपको न्यूयॉर्क का पस मंज़र भी मिलता है और साथ साथ इनकी छोटी छोटी तहरीरें हैं, मुख्तसर तहरीरें हैं, जिसको आप पढ़ना शुरू करें तो आखिर में जाके आप बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। इसलिए कि पंच जो है वो इतना खूबसूरत होता है और इतनी खामोशी से, इतनी सादगी से ये एक ऐसी बात कह जाते हैं जो जिस पे आदमी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, धरना जो इन्होंने न्यूयॉर्क में दिया है तो ये इनका पहला धरना नहीं है मेरे ख्याल में। कराची में भी इन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात पर धरना दिया है, जिसमें से एक तो पाकिस्तान टेलीविज़न का कराची सेंटर था, जिसमें ये मुख्तलिफ़ अखबारात की रिपोर्टिंग के लिए आते थे और रिपोर्टिंग इनकी कोई रवायती किस्म की रिपोर्टिंग नहीं होती थी, उसमें भी एक चाशनी होती थी, उसमें कुछ उसमें जिसको कहते हैं ना कि जर्नलिज्म इज ए लिटरेचर रिटन इन ए हरी, तो वो वाली बात थी। और ये धरना उनका इस तरह से था कि जहाँ ये देखते थे, जहाँ इल्म दानिश की कोई बात हो रही हो, मसलन इफ्तिखार आरिफ साहब का कमरा उन दिनों बहुत मशहूर था, जहाँ बड़े बड़े दानिश्वर, मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तान के इतने बड़े दानिश्वर उस कमरे में जमा ना हुए किसी और जगह, जितने इफ्तिखार आरिफ साहब के यहाँ होते थे। और ये अक्सर व बेशतर हम लोग ने वहाँ उनके दरमियान बैठ के उसमें
उसमें कोई तफसीस नहीं थी। उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, जो उसवली आबादी भी आते थे, असद भाई भी आते थे, और अब्दुल रऊफ फरूज भी आते थे, और खुद मुदब्बिर इल्मी साहब जो उनके नायब मुदीर थे वो भी बहुत पढ़े लिखे और काबिल आदमी थे। ये सब जो लोग जब जमा हो जाएं तो इल्म दानिश और इस तरह की बातें होती हैं, तो मोहसिन उसमें बहुत दिलचस्पी लिया करते थे और काफ़ी देर बैठा करते थे। तो मैं ये कहूँगा कि ये इनका जो धरना जो था ये टेलीविज़न सेंटर कराची में था, और इन्होंने बहुत कुछ अच्छे कॉलम लिखे, और उनके नाम गिनाओ तो बहुत सारे उसमें मुख्तलिफ मैगज़ीन थे, अखबार थे, उन्हें भी था, और भी मुसावात में भी इन्होंने लिखा। तो ये बड़ा एक दिलचस्प सफ़र जो था जो इन्होंने कराची से न्यूयॉर्क तक तय किया, और न्यूयॉर्क जाके भी उन्होंने वहाँ पे मैंने देखा था कि जो अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन है वो खासा काम करती है। तो पता चला ऐसा नहीं है, न्यूयॉर्क में जो लोग हैं पाकिस्तानी वो भी काफ़ी आगे हैं, और इसमें जमाल मोहसिन का बड़ा अच्छा एक कंट्रीब्यूशन है। और फेसबुक पे अगर आप जाएं तो आपको इनको मुख्तलिफ इनकी वो निकलेंगी सारी चीज़ें। तो मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे ज़ोर कलम बहुत ज़्यादा, मैं रुखसत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी इस तकरीब में राहीना फिरदौस साहिबा भी मौजूद हैं, जो एंकर पर्सन हैं और टेलीविज़न और पाकिस्तान टेलीविज़न से भी वाबस्ता रही हैं, हमारी बज़्म तलबा के साथियों में भी शामिल हैं, और इस वक्त वो यहाँ मौजूद हैं, न्यूयॉर्क में क़याम पज़ीर हैं। तो वो जमाल मोहसिन की ज़ाहिर बहुत पुरानी दोस्त भी हैं और बहुत वक्त उन्होंने साथ गुजारा है। मैं उनको दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तस्दीक कर दूँ, बहुत शुक्रिया आज इस प्रोग्राम में आकर कुछ कहने का मौका मिला। लेकिन कमाल की बात यह है कि मैं जमाल मोहसिन को बिल्कुल नहीं जानती हूँ, और उनके साथ मेरा वक्त भी कभी नहीं ज़्यादा गुजरा। बस इत्तेफाक की बात है कि ये न्यूयॉर्क में होते हैं, मैं न्यू जर्सी में होती हूँ। और इनके बारे में जहाँ तक मैं जानती थी वो ये थी कि मैं एक शो किया करती थी बात से बात राहिला के साथ। जब पहली बार मैंने अपने प्रोग्राम में इन्हें मदऊ किया और इनके बारे में जो मुझे जानने का मौका मिला वो ये था कि ये एक बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल एडवाइज़र है। और उस दौरान ये भी पता चला कि ये शोबे सहाफ़त से वाबस्ता रहे हैं। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि न्यूयॉर्क में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि शोबे सहाफ़त से वाबस्ता होते हुए सहाफ़ी हों। वहाँ पर अमूमन बहुत सारे लोग बहुत सारे अखबारात निकालते भी हैं, लिखते भी हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ कभी सहाफ़त से रहा नहीं। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि मैंने इनके मज़ामीन अक्सर बेशतर अखबार में पढ़े, और वहाँ होने वाली मुख्तलिफ तकारीब में जब कभी गए तो हमारा कभी कभार मिलना जुलना भी रहा। बज़्म तलबा का हवाला हमारा ऐसा हवाला है कि जो हमें हमेशा एक ताल्लुक़ में बात के रखता है, और वो ताल्लुक़ ऐसा ताल्लुक़ है जिसे मैं सबसे अहम समझती हूँ, क्योंकि बज़्म तलबा में हमारे जितने भी साथी, हमारे जितने भी सीनियर्स थे, जमाल मोहसिन हमारे सीनियर, और इनके लिखे हुए बहुत सारे मज़ामीन के बारे में जितना कुछ मैं जानती थी वो सब चीज़ें बाहर बहुत अहमियत की हामिल हैं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों इस जगह पर मौजूद हैं, बल्कि हमारे नीलोफर बाज़ी साहिबा भी यहाँ मौजूद हैं, और हम सब अमेरिका से यहाँ पर इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हैं। जहाँ तक सवाल है धरना, लफ्ज़ धरना जो है वो पाकिस्तानियों की बदनामी का बायस हो जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं अमेरिका जाएँ और हमेशा के लिए बाहर जाएँ, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। हमारा दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए ही धड़कता है। हम हमेशा वहाँ से जब भी मौका मिलता है पाकिस्तान आते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अपने लोगों के दरमियान अपनी चीज़ों को ज़्यादातर शेयर कर सकें। जैसा कि इनकी किताब के बारे में हमने देखा, अमेरिका में दायमी धरना मैं समझती हूँ कि इस हवाले से इनके लिए तो बहुत ही मुनासिब है, क्योंकि कई सालों से वहाँ मुकीम हैं, और न सिर्फ ये कि गए थे वहाँ पर पढ़ने के लिए, लेकिन उस दौरान इनकी मुलाकात हमारी भाभी से हो गई। तो उसके बाद इनका आने का तो मकसद काफ़ी हद तक मैं कहती हूँ अधूरा रह गया,
क्योंकि फिर अगर आपकी ज़िंदगी वहाँ पर बस जाए, आपकी सगाई लुगाई सब कुछ वहाँ पर हो, तो फिर भी दिल वहीं रह जाता है। तो बस बहरहाल मेरी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात जमाल मोहसिन साहब के लिए, और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूँगी आज इस जगह पर जहाँ पर आप सब लोग मौजूद हैं, सब काबिल कदर, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे लोग पाकिस्तान में हम सब मौजूद हैं और अमेरिका में दायमी धरना देने के लिए ऐलान यहाँ करने के लिए आए हैं। तो बहरहाल बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया मुझे इज़हार ख्याल के लिए यहाँ पर मौका दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सब लोग बहुत इख्तिसार से काम ले रहे हैं और मुझे लग ही रहा है कि ये जो तकरीब 1.5 या 2 घंटे में ख़त्म होनी चाहिए, वो शायद आधे पौन घंटे में ही खत्म हो जाएगी। हुमैरा अतहर का और जमाल मोहसिन का और तारिक महमूद मियाँ या फातिमा हसन, ये सब लोग शोबे सहाफ़त की से ताल्लुक़ रखते हैं और शोबे की पहचान है। और जो इनका बैच था शोबे सहाफ़त के तकरीबन सभी लोग, सभी हर बैच में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत मारूफ होते हैं, लेकिन इनका बैच कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि ऐसा बैच था कि जिसके बहुत सारे लोग अमली सहाफ़त में मारूफ हुए। हुमैरा अतहर अब भी सहाफ़त से वाबस्ता हैं, अपना पब्लिशिंग हाउस है इनका, और इनके पब्लिशिंग हाउस से ही ये किताब अमेरिका में दायमी धरना शाये हुई है। और बहुत पुरानी दोस्त हैं जमाल मोहसिन की, मुझे उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ अंदरूनी खाना बातें ज़रूर बताएंगी हमें जमाल के बारे में। लंगर आने की सोची है। मोहतरम जनाब सदर, साहिब किताब, मेहमान खुसूसी और दीगर मेहमानान गिरामी, सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी अकील अब्बास जाफरी बता रहे थे कि हम ज़ाहिर क्लास फेलो हैं, तो जामिया कराची के शोबे सहाफ़त ने बिलाशुबा अमली सहाफ़त को बहुत से नामवर और काबिल सहाफ़ी और उस्ताद दिए हैं। ताहम हमारा बैच इस एतबार से मुनफरिद समझा जाता है कि इसके ज़्यादातर तलबा और तालबात अमली सहाफ़त जैसे मुताल्लिक़ा शोबों में गए और उनकी भी अक्सरियत ने नाम कमाया। जो अमली सहाफ़त में नहीं आए उन्होंने शेर व अदब और शोबे तदरीस में झंडे गाड़े। हमारे नज़दीक हमारे हम जमातों की मुनफरिद और काबिल फ़ख्र बात यह है कि हम तमाम के तमाम आज तक दोस्ती के रिश्ते में इस मजबूती से जुड़े हुए हैं कि बरसों एक दूसरे से मुलाकात न होने के बावजूद एक दूसरे के हाल अहवाल से गाफिल नहीं रहते। इसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद जमाल मोहसिन है, जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से अमेरिका में बौक़ल खुद दायमी धरना दिए हुए हैं, मगर जब कभी कराची आना होता है तो तबल बजाकर हम दोस्तों को पहले से इतला कर देते हैं। साथ ही ये हुक्म भी जारी कर देते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ को भी धमका दो कि हम आ रहे हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम होगा, उम्मन 10 या 15 दिन, लेकिन हमें सबसे मिलना है। जो हमें नहीं जानते वो यकीनन ये तो जानना चाहेंगे कि आखिर हमारा बैच कौन सा था, यानी हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। सो उनके लिए इतना जानना ही काफ़ी है कि चंद ही बरस बाद हम दावे से कह सकेंगे कि निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, और बकौल शख्स से इतने बरस का कोई दुश्मन भी नहीं मिलता। जमाल मोहसिन ने एमए मुकम्मल करने के बाद मुख्तसर अरसे के लिए यहाँ किसी मैगज़ीन में मुलाजमत की, फिर खबर मिली कि वो अमरीका से डाल गए। लिखने के जरासीम तो उन्हें विरासत में मिले हैं, सो अमरीका पहुँचकर कदम जमाने तक वहाँ लिखने की सरगर्मियाँ बेशक महदूद रही होंगी, ताहम अपने घर वालों और दोस्तों को खुतूत पाबंदी से लिखते थे। वो खुतूत भी गोया कालम ही होते थे। ऐसे मज़े मज़े के पुरलुत्फ़ जुमले के बेसाख्ता हंसी आ जाती। चंद जुमले तो हमें आज भी याद हैं, जो मेरे साथ ख़तों किताबत हुई थी, तो उसमें एक दफ़ा लिखा, यहाँ जैसा कि तुम जानती हो सारे काम खुद करने होते हैं, यहाँ तक कि शाम को घर आकर खाना भी खुद ही पकाना होता है, और हम कुछ खाने तो पकाना भी सीख गए हैं। कल ही मुर्गी पकाई थी। मालूम हुआ कि मुर्गी पकाना तो कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं, अलबत्ता खाने से पहले उसकी बोटियों के जले हुए से नोच नोच कर अलग करना खासा दुश्वार काम है। हम सभी हम जमात जिन्हें लिखने का शौक़ था, ज़माना तालिब इल्मी से कुछ न कुछ लिख रहे हैं। जमाल भी उस ज़माने में फ़िकाहिया कालम लिखा करते थे, जिनमें से कुछ तो रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम बज़्म तलबा में पढ़े गए और कुछ मुख्तलिफ़ अखबारात व रसायल में शामिल हुए। अमेरिका जाकर जमाल ने बकौल खुद 2 डिग्रियाँ हासिल की, एक MBA और दूसरी ABA। MBA से तो सभी वाकिफ़ हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि ABA का मतलब है अमेरिकन बीवी एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिकन बीवी क्या मिली, जमाल ने तो गोया अमेरिका में धरना ही दे दिया, जो अब दायमी धरना में तब्दील हो चुका है। अब तो जमाल जल्दी अपनी शादी की 43वीं सालगिरह मनाने वाले हैं।
आप यकीनन मेरी राय से इत्तेफाक करेंगे कि इस तवील और खुशो-खुर्रम रफ़ाकत में जमाल से ज़्यादा मेरिलिन यानी हमारी भाभी का कमाल होगा। और क्यों ना हो, जमाल की राय के मुताबिक वो अमेरिकन बिहारी जो हैं। बात दूसरी तरफ निकल गई। कहना यह था कि MBA करने के बाद जमाल ने अपना रास्ता तो बदल लिया, यानी सहाफ़त छोड़कर बिज़नेस को ज़रिया माश बना लिया। और यकीनन ये बहुत दानिशमंदाना फ़ैसला किया, वरना हम सहाफ़ियों का हाल सब पर आश्कार है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, तो सहाफ़ी या कालम निगार भी रोज़ी रोटी के लिए कोई काम करे, लिखने से बात नहीं आ सकता। जमाल ने भी ये मशक़ सुखन जारी रखी। कालम ही नहीं, कुछ मज़ाहिया खाके भी लिखे, बल्कि ये खाका तो हाल ही में न्यूयॉर्क में स्टेज पर पेश भी किया गया है। और मज़े की बात यह कि इसमें एक किरदार खुद जमाल ने भी अदा किया। वो ये एक आलम निगार के साथ साथ अदाकार भी बन गया। ये सब काम करते करते जमाल को अचानक एक रोज़ ख्याल आया कि पारा पारा बिखरे हुए अपने कालम और मज़ामीन को किताबी सूरत में महफूज कर दिया जाए। मालूम नहीं क्या सोचकर हमें फ़ोन किया और पूछा आजकल क्या कर रही है, कुछ फुर्सत है। और हमारा हाल ये है कि जब से बेरोज़गार में मसरूफियत तो बहुत है, मगर काम कोई नहीं। ये जानते ही जमाल ने अपना मुद्दा बयान किया। दरअसल मैं 1 माह बाद पाकिस्तान आ रहा हूँ और चाहता हूँ कि इससे पहले मेरी किताब आ जाए। अगर तुम ये काम कर दो तो मैं तमाम मज़ामीन के मुसव्वदे और तलाशी ईमेल कर दो। हम चूँकि चाह कर भी हमदर्द दवाखाना बंद नहीं कर सकते, लिहाजा ये भारी पत्थर उठा लिया। इस 1 माह में हम दोनों पर क्या बीती, इसका अहवाल दिलचस्प तो है, लेकिन यहाँ कुछ गैर ज़रूरी है। सो आखिर में इतना ही कहना है कि जमाल ने जो जिगरे लफ्ज़ जमा करके किताब मुरतब की है, इसमें अगर कोई गलती या खामी नज़र आए तो इसे बिलाश झिझक हमारे खाते में डाल दें कि हम दिल कुशादा रखते हैं। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया उमर आदम साहब। मुझे जिस चीज़ की तवक्को थी वो आपने बयान नहीं दी कि कुछ ऐसे वाक़यात बयान करती, क्योंकि ये तारिक महमूद और जमाल मोहसिन ये शोबे के बहुत ही शैतान किस्म की, शरीर किस्म के लड़के वो करते थे। और इनकी तहरीरें पढ़ के लोगों को हौसला मिलता था कि हम भी कुछ लिखें। धनक में और नुसरत और इस तरह के दूसरे पर्चों में इनकी तहरीरें छपा करती थी। और तारिक महमूद मियाँ तो कराची में ब्यूरो चीफ थे धनक जैसे रिसाले के, जो बहुत बड़ी बात थी उसको। अब मैं दावत दूँगा डॉक्टर फातिमा हसन को, जिनका मेरा ख्याल है कि तारुफ कराना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अंजुमन तरक्की उर्दू से वाबस्ता रही है। आजकल आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की लाइब्रेरी को इन्होंने 35,000 किताबों से मुज़य्यन कर दिया है। मुतअद्दिद किताबों की मुसन्निफ़ हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं। डॉक्टर फातिमा हसन। साहिब सदर रफ़ीउद्दीन राज साहब, मेहमान खुसूसी नीलोफर अब्बासी, साहिब किताब जमाल मोहसिन, मुक़र्रिरीन, सामईन, मेरे क्लास फेलोज़, दोस्तों, जिस बात की तवक्को ये हुमैरा से कर रहे थे वो मैं करूँगी। मैंने पहली मरतबा मकाला नहीं लिखा है और ज़बानी बोल रही हूँ, क्योंकि जमाल के साथ बहुत संजीदा बातें करने की गुंजाइश मेरे पास कम अज़ कम नहीं, क्योंकि जो जिस बैच का हवाला दिया जा रहा है ये सन 1974-75 का था। और उसमें हुमैरा, ताबिंदा सामने बैठी है, शाइस्ता, और ये भी हमारी क्लास फेलो थी। लेकिन हमारा एक इंटरनल ग्रुप भी था जिसमें तारिक महमूद मियाँ, जमाल मोहसिन और बारी, इनाम बारी, हुसैन एक दोस्त थे, और 2 और थी, सीमा खान, सीमा बिल्किस सीमा भटकली, और एक हमारी दोस्त बेचारी का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। बिल्किस ईरानी से शादी करके उनको तैयारी हो गई, ईरान गई, लेकिन कभी कभी आती हैं और मिलती रहती हैं। मगर ये ग्रुप जो है ये एक दूसरे से बिल्कुल उसी तरह जुड़ा रहा जैसे कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी के ज़माने में था। और उसकी वजह ये थी कि हम सब बहुत लिखने वाले और अपने अपने ज़ौक़ में बहुत पढ़ने वाले, और
ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے والے، اور جس میں کوئی بدنیتی شامل نہیں ہوتی تھی، صرف دوستی ہوتی تھی، اور وہ اتنی پرخلوص دوستی تھی کہ کبھی اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور اس میں تھوڑا سا کمال جمال کے کا بھی ہے کہ جب سے یہ باہر گئے ہیں، یہ جب بھی آتے ہیں ہمیں جوڑتے اور ملاتے رہتے ہیں۔ تو جو بھی اگر بلقیس بھی یہاں ہوتی ہیں تو وہ بھی آ جاتی، حمیرہ بھی شریک ہو جاتی، تابندہ بھی، اور ہم سب ایک مرتبہ اپنی یونیورسٹی کی یادوں کو تازہ کر لیتے ہیں۔ جمال پہ اگر میں مضمون لکھوں گی تو اس کا عنوان ہوگا جمال کی خالہ۔ اب یہ خالہ کہاں سے آئی؟ تو ہوا یہ کہ اب ہم ٹین ایج کراس کر کے 74 میں کلاس میں آئے تھے ماسٹر کی، تو یہ ہمیشہ سے عمر کے چور ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ، نوجوان نظر آتے ہیں۔ تو یہ بالکل چھوٹے لگتے تھے، یہ ٹین ایجر لگتے تھے، اور ان کے پاس ایک ہونڈا 50 ہوتی تھی، طارق کے پاس کار ہوتی تھی، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو میں کوشش کر کے ایک چشمہ اور ساڑی کے ساتھ اپنے کو بہت بردبار قسم کی بڑی سی خاتون بنانے کی کوشش کرتی تھی، اور جمال سے کہتی تھی کہ مجھے اپنی بائک پر بیٹھاؤ، کوئی بھی تمہارے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہوگا، سب سمجھیں گے اپنی خالہ کو لے جا رہے ہیں۔ اور جمال سے انسیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ بہار کے ہیں، اور میرا تعلق، میرے والدین کا تعلق مشرقی یو پی سے، جو بہار کا بارڈر ہے، غازی پور سے، اور پھر آئی بھی میں ڈھاکہ سے تھی تو لوگ مجھے بہاری سمجھتے تھے، اور میرا ساڑی باندھنے کا اسٹائل بھی، تو یہ سب ہمیں رشتہ دار ہی سمجھتے تھے۔ حد تو حد ہے کہ ان کے گھر والے بھی شک نہیں کرتے تھے، جب ان کی دوستوں کا فون آتا کسی خاتون کا تو وہ بڑے دھڑلے سے کہتی کہ میں فاطمہ بول رہی ہوں۔ اور ایک مرتبہ یہ ہوا کہ سبھی محسن بھائی جو ریڈیو پاکستان کی وجہ سے مجھے اچھی طرح جانتے تھے، ایک دن ہم لوگ پریس کلب میں ساتھ تھے، عصمت چغتائی آئی ہوئی تھی، اور محسن بھائی، سبھی محسن بھائی گھر گئے تو ان خاتون کا فون آ گیا، انہوں نے کہا کہ میں فاطمہ بول رہی ہوں، تو انہوں نے کہا ارے فاطمہ ابھی تو تم کو پریس کلب میں چھوڑ کے آئے ہو۔ تو وہ گھبرا گئی، اب پتہ نہیں جمال نے کیسے یہ سچویشن سنبھالی، لیکن بعد میں انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ تو ایسے ایسے واقعات، ایک دن انہوں نے مجھے موٹر سائیکل سے گرا بھی دیا تھا، میں مساوات میں وہ کر رہی تھی انٹرنشپ، اور ریڈیو پاکستان میں ہم لوگوں کا پہلے تو ہمارا دھرنا ریڈیو پاکستان میں ہوتا تھا، بزم طلبہ میں ہم سب ساتھ ہوتے تھے، طارق بھی جمال بھی، تو وہاں سے اب مجھے انٹرنشپ کر رہی تھی تو مساوات جانا تھا، تو میں نے جمال سے حسب دستور کہا کہ مجھے وہاں پہنچاؤ، تو وہ شام کی پٹریاں تھی، وہاں پہ موٹر سائیکل الجھی اور میں گری، لیکن شکر ہے کہ کوئی بڑا حادثہ نہیں پیش آیا۔ تو ایسے ایسے یادیں ہیں کہ وہ دہراتے ہوئے ہم لوگ اکثر جب ملتے ہیں دہراتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ جمال کے لیے میں کہوں گی کہ یہ بہت سچے پاکستانی ہیں، اچھے بہاری ہیں، اور بہت ہی اچھے دوست ہیں۔ وہ دوست نہیں ہیں جن کے لیے پیرزادہ اقبال پیرزادہ نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی میرے دشمن، کبھی کبھی میرے دوست۔ یہ بالکل ہمیشہ دوست رہے ہیں، دوستوں کے دوست، اور جن کے دوست نہیں بھی تھے ان کے بھی دوست۔ تو انہوں نے کبھی دوستی پہ حرف نہیں آنے دیا، ہمیشہ نبھایا، اور ان کی رفیق حیات بھی انہوں نے ڈھونڈ کر ایسی تلاش کی، ایسی منتخب کی کہ جو ان کی دوست نوازی کو سہارا دے سکے۔ مثلا جب میں امریکہ گئی تو انہوں نے مجھے وہاں بلایا، اور وہاں ایک پاکستان ڈے کی تقریب تھی، اور میں نے دیکھا کہ ان کی بیگم نہ صرف اس تقریب کو بھی سنبھال رہی تھی، ان کے دوستوں کی بھی خاطر مدارات کر رہی تھی، کم از کم میری تو انہوں نے بڑی خاطر کی۔ تو یہ ان کے ایک خوبی ایسی ہے جس کو میں کہتی ہوں کہ آج کے دور میں ذرا مشکل سے ملتی ہے، کہ یہ امریکہ جا کے بھی ایک تو پاکستانی رہے، اور دوسرے رویوں میں یہیں کے رہے، وہاں کے نہیں ہوئے۔ یہ جو کتاب ہے اس کو میں نے، یہ مجھے یہ شکل میں نے نکالی ہے، تو پھر بھی کوشش کر کے میں نے اس کو پڑھ تو لیا اور اس کے اوپر لکھوں گی بھی، لیکن اس کتاب میں آپ لوگ جمال
इन्होंने कहा कि चंद बरस में नहीं, हम 2 बरस में हमारी दोस्ती के 50 साल हो जाएंगे। 74 का सेशन थे और इतने ही बरस के ये कॉलम भी है और तकरीबन 40 कॉलम इसके अंदर है और जमाल की ज़िंदगी के सारे मराहिल इसमें लिखे गए हैं। इनकी तहरीर बड़ी सादा और वही बेतकल्लुफ़ होती है, जो बेतकल्लुफ़ी इनके अंदर है, शाइस्तगी इनके अंदर है, वो शाइस्तगी भी होती है। जो मुस्कुराहट इनके चेहरे पर सजी है, वो मुस्कुराहट भी इन तहरीरों में मौजूद है। और एक आध तो ऐसा है कि मुझे ये लगता है कि जमाल वहाँ पे ये कॉलम इनका अफसाना बनते बनते रह गया है। मसलन दास्तान रुमान, ये पूरा एक मुझे अफसाना लगता है और इसका एक पैरा मैं आपको सुनाऊंगी, उससे आप ये देखिएगा। एक तो इनका मुशाहिदा बड़ा बारीक भी है और ये उसको लिखने में भी शोबे सहाफत एक काम तो सिखा देता है, वो है इख्तिसार से लिखना, बड़ी बड़ी बातों को फैलाए बगैर इख्तिसार से लिखना। तो ये इख्तिसार में भी बड़ी बातें कर लेते हैं। अब ये एक 68 साला यहूदन सठिया जाने की उम्र में पेंगे बढ़ाने में मशहूर थी। उसके बारे में ये एक पैरा है कि अब वो कदीम दोशीज़ा बड़ी बिल्डिंग के एक हिस्से में अकेली रहती है, बाकी में किराएदार क्यों? क्योंकि घबरू जवान 10 साल कबल रहलत फरमा चुका है, जिसके बाद उसने शादी नहीं की। शौहर की मोहब्बत भी नहीं, बिल्डिंग की मोहब्बत में, क्योंकि दूसरी शादी की सूरत में उसकी जायदाद उसके बच्चों में तकसीम हो जाएगी। इस तरह इसने हमारी मशरकी औरतों की तरह बच्चों की वजह से दूसरी शादी नहीं की। अलबत्ता वजूह मुख्तलिफ है। उस 68 साला दोशीज़ा का 50 साला बॉयफ्रेंड भी था, जो एक वीकेंड पर घास वगैरह काटता और दूसरे काम कर दिया करता। हमने पूछा कि वो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती, तो उसने एक तो मज़कूरा बाला वजह बताई, दूसरे ये बताई कि वो बहुत मामूली आदमी है। तो ये इस तरह से लिखते हैं। और इसका अगला जुमला भी बहुत खूब, हमने उसे बहुत वर्गलाया कि मोहब्बत में माली बुलंदी और पस्ती नहीं देखी जाती, अगर तुम उसे पसंद करती हो तो शादी कर लो। लेकिन उसने हाँ ना भरी। तब हमने एक आह भर कर कहा, देखो तुम्हारा इस आलम में बुजुर्गी में एक बॉयफ्रेंड है, जबकि हम इस जवानी के बावजूद गर्लफ्रेंड से महरूम है। वो इसका कुछ और ही मतलब समझी, कहने लगी कि तुम्हें अपनी उम्र की ढूंढनी चाहिए। तो ये इनका 1979 का कॉलम है। इसके बाद इन्होंने अपनी उम्र की ढूंढ ली और उसके भी 45 बरस गुजर गए हैं। तो अल्लाह ताला इनके कलम को और इनके रिश्तों को, दोनों ही ताल्लुक़ को बहुत मुस्तहकम रखे। ये इसी तरह लिखते रहें, आते रहें और हम सब से अपने मोहब्बत के रिश्ते सारे दुनिया में जो फैले हुए, वैसे भी अमेरिका में धरना बहुत ज़रूरी है कि अब तक अमेरिका यहाँ पर धरना देता रहा है, जिस मुल्क में चाहे धरना दे लेता है। आज तो हमारे 4 अमेरिकन मौजूद हैं इस वक्त। तो खैर से गुजरे आज का दिन, खैर से गुजरे आज की रात। जमाल बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत मुबारकबाद। कराची यूनिवर्सिटी में तारिक महमूद मियाँ और जमाल मोहसिन एक जान दो कालिब समझे जाते थे। और ये उस वक्त जब जो इनकी तहरीरें शाये होती थी या इंटरव्यू शाये होते थे, तो ये फैसला करना मुश्किल होता था कि कौन ज़्यादा खूबसूरत लिखता है और कौन ज़्यादा पढ़ा जाता है। हम तो आरज़ू करते थे कि इनकी तरह कभी 2 लाइनें लिखने की का हुनर आ जाए। तो तारिक महमूद मियाँ उस वक्त भी, यानी 1975 में मेरी तहरीर भी शायद 2 तहरीरें शाये हुई थी धनक में। तो उस वक्त ये कराची के ब्यूरो चीफ थे। बाद में इन्होंने उकाब के नाम से भी एक रिसाला निकाला और मुख्तलिफ अखबारात से, जंग से, नवाए वक्त से और एक्सप्रेस से वाबस्ता रहे बतौर कॉलम निगार। लेकिन इनके लिखने का वैसे तो सफ़र बहुत जारी रहा, लेकिन किताब इनकी भी अब तक सिर्फ एक आई है, 6.5 फीट लंबी उदासी। इसके नाम से ही आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितनी जहानत से भरपूर नाम है। और तारिक महमूद मियाँ के अफसाने हैं उसमें,
लेकिन मैं इनके कॉलमों का और इनके लिखे हुए खाकों के मजमूए का मुंतज़िर हूँ। अब तारिक महमूद मियाँ तशरीफ़ लाएंगे और बताएंगे कि जमाल मोहसिन से इनका सिलसिला कब कायम हुआ दोस्ती का, और ये तकरीबन 45 साल पुराना एक रिश्ता है इनका आपस का, और शायद ही कोई जमाल को इतना जानता होगा जितना तारिक जानते हैं, या तारिक को इतना जानता होगा जितना जमाल जानते हैं। तो मैं दावत देता हूँ तारिक महमूद मियाँ को। अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ लिख के लाया हूँ, आपके मेरे ख्याल कोई 7-8 मिनट अब इसमें ज़ाया होंगे। भरी महफिल में नस्ल और ज़ात पात का जिक्र आपको अच्छा नहीं लगता तो मुझे भी पसंद नहीं होता, इसलिए कि ये बात को किसी और तरफ ले जा सकता है। अभी कल ही एक दोस्त फरमा रहे थे कि भाई ये ज़माना एक और अंदाज का है, शौक़ हो तो यूँ करो, अपने नाम का फ़कत तीसरा हिस्सा ट्विटर के एक ट्वीट में लिख दो और फिर तमाशा देखो, तुम्हारी आने वाली कई नस्लें कानों को हाथ लगाए जन्म लेंगी। यही हशर खान लिखने में भी होगा। ये जिक्र यूँ आया कि जमाल मोहसिन ने इस किताब में बताया है कि वो सैयद है, बिहारी है, आबाई ताल्लुक भारतीय शहर दसना से है, और उसके 6 बहन भाइयों में से 5 की शादियां कुफ में और कुफ में हुई हैं। अब ये कुफ क्या है ये जानने के लिए किताब पढ़िए। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि कोई निस्फ सदी कबल कराची आने के बाद से जिनसे भी कारूरा मिला उनमें से बेशतर के आबा का ताल्लुक बिहार से था। बिहारियों की ये बहार अभी तक लगी है। सबसे सीनियर हमारे एक दोस्त ज़फ़रुल हसन साहब थे। नौजवानी में पटना से कराची आए, फिर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करके आए तो खलाई तहकीक के एक इदारे में सेक्रेटरी हो गए। हमसे 10-12 साल बड़े, मगर कहीं ज़्यादा चाको चौबंद और मामला फ़हम। हमारी मुलाकात बिला नागा एक दफ्तर में होती जहाँ सरमायाकारी का काम होता था। काम क्या होता था, शाम तक बस गप्पे लगती। वो वहाँ हर सुबह 10 बजे मौजूद होते, खुद कार चलाते और हर जगह घूमते। फिर हर हफ्ते 8 दिन के बाद अपना चालान करवाने का किस्सा सुनाते। आज हम पकड़े गए, कहते पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, या तो हम कोई नामालूम गलती कर बैठते हैं और या फिर बूढ़ा देख के धर लेते हैं। हम कहते ज़फ़र साहब आप तो हमारा रोल मॉडल हैं, बूढ़े नहीं हैं, हमारा हौसला है। आपको एक्टिव देख के हमें 10-12 साल की गुंजाइश नज़र आती रहती है। वो आगे से एक शेर सुनाते हैं। ये गालिब के शेर उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। इसका हिंदी तर्जुमा था, उनके देखे से जो आ जाए है मुख पर शोभा, वो समझते हैं कि रोगी की दिशा उत्तम है। उन्हें ऐसी लातादाद चीज़ें अजबर थी। बहुत से मशाइर के नामों का हिंदी तर्जुमा सुनाते, जैसे अबुल कलाम आज़ाद का तर्जुमा महाबक्कू छुटेरा। बिहार चूँकि आगाज़ जवानी में छोड़ा था, इसलिए गुफ्तगू में पटना और उसके एक करीबी गाँव का जिक्र अक्सर आता। बुलबुल के बोलने वाले किस्से को अपने गाँव का बताते। कहते गाँव की पगडंडी पर 2 शहरी खड़े बहस कर रहे थे। एक का कहना था कि बुलबुल बोलती है, दूसरा कहता कि नहीं बुलबुल बोलता है। जब बहस तूल पकड़ गई तो उन्होंने सर पर टोकरा रख के गुजरते हुए एक देहाती से पूछा कि तुम बताओ बुलबुल बोलती है या बुलबुल बोलता है, हमारा बहुत झगड़ा हो चुका। देहाती ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, बुलबुल ना तो बोलती है और ना बोलता है, बुलबुल तो बोले है। एक रोज़ हम हस्बे मामूल दफ्तर में बैठे थे कि सभी भाईजान अंदर दाखिल हुए। सभी मोहसिन, जमाल के सबसे बड़े भाई। उनके हाथ में उनकी नई किताब दास्तान कहते कहते थी। मैं उठ के उनके साथ दूसरे कमरे में चला गया। उनकी मेहरबानी किताब वो मेरे लिए लाए थे। वापसी के लिए बाहर निकले तो देखा कि ज़फ़र साहब आंखें झपक के उन्हें देख रहे हैं। उनके जाते ही पूछने लगे, ये कौन साहब थे?
मैंने कहा सभी मोहसिन थे। हाथ पर हाथ मार कर बोले, अरे जभी तो मैं भी कहूँ कुछ देखे देखे लग रहे हैं। आप उन्हें कैसे जानते हैं? मैंने पूछा। अरे साहब, हम शरफाबाद में उनके मोहल्ले में रहते थे, लड़कपन में उधर ही थे। सब लड़के उनके अब्बा से बहुत डरते थे, मैं भी डरता था। क्यों? उनसे डरने की क्या बात थी? मोहसिन साहब तो बड़े स्मार्ट और नफीस इंसान थे। मैंने पूछा। नफीस तो थे, लेकिन रोब बहुत था, डिसिप्लिन के सख्त पाबंद। मगरब के बाद गली में आवारा खड़े होने में पाबंदी थी। सब लौंडे लपाड़ों की हरकत पर उनकी नज़र थी। अरे साहब, वो अदब आदाब का, शर्म और लिहाज का ज़माना था। उन्होंने ठीक कहा। अब वो ज़माना बदल चुका। वो गली, वो मोहल्ला, पूरे का पूरा मोहल्ले वकूफ़ बदल चुका। सर उठाती तजारती इमारत ने घरों की जगह ले ली। जमाल मोहसिन 2-4 बरस के बाद न्यूयॉर्क से आता है तो वहाँ ज़रूर जाता है। कोनों खुदरों से अपने बचपन के साथियों को ढूंढता है, महफिल सजाता है, अमेरिका वापस जाके दायमी धरना देता है। सारी तफसील महफिल दर महफिल, अखबार दर अखबार और फेसबुक दर फेसबुक सुनाता है। फिर एक किताब आ जाती है और हम यहाँ जमा हो जाते हैं। इस किताब में उसकी ज़िंदगी के हर दौर की तहरीर है, किस्से हैं। इस सिलसिले का आगाज़ आज से कोई निस्फ सदी कबल होता है। उस वक्त हम दोनों जामिया कराची में पढ़ते थे। रेडियो पर कॉलम सुनाते हैं तो साथ साथ, 20 रुपए का चेक लेते हैं तो साथ साथ, आहंग में तस्वीर के साथ मजमून छपते हैं तो साथ साथ, यूँ एक दूसरे के बराबर में। ऐसे और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार बार। वो तो जब बराबर में परवीन शाकिर का और फिर हमारा अथर का मजमून छपा तो मतलब साफ हुआ, वरना लोग तो और तरह की बातें बनाने को थे। अब आज यहाँ हमसे उठेंगे तो एक और दौर ख़त्म हो जाएगा, बस कुछ तस्वीरें बाकी रह जाएंगी, डिजिटल और रंगीन। एक ज़माने में ब्लैक एंड वाइट होती थी। 25-30 बरस पहले मैं ऐसी कुछ तस्वीरें अपनी बेटी को दिखाता हूँ तो बताता हूँ, ये जिसके घर पे घने बाल हैं ये मैं हूँ। ये बेल बॉटम वाला इनाम बारी है। माथे पे कुंडल वाला जमाल मोहसिन है। ये साड़ी में अनीस फातिमा है, फातिमा हसन के नाम से लिखती है। ये गुंचा जाफरी है। ये स्वेटर वाला मिर्ज़ा सलीम बेग है। ये हमारा अथर है, शहनाज जाफ़र है, तबिंदर रहमान है। ये हमारे उस्ताद हैं, शरीफुल मुजाहिद साहब, मतीन साहब, ज़करिया साजिद साहब, सही साहब और बहुत से दूसरे। ये सब तस्वीरें स्याह और सफ़ेद हैं। गुज़श्ता दिनों ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों वाली वो एल्बम मेरी बेटी की 10 साला बेटी उठा के मेरे पास लाई, यूँ जैसे कोई ख़जाना हाथ आ गया हो। मैंने मट्टी झाड़ के उसे खोला और उसे बताया कि जिसके घर पे सर पे घने बाल हैं ये मैं हूँ। ये बेल बॉटम वाला इनाम बारी था, ये जमाल मोहसिन है, ये फातिमा हसन है, ये शाइस्ता फरहत है, ये गौर सुल्ताना थी, ये शहनाज थी, ये अनवर अली था, ये मिर्ज़ा सलीम बेग था, ये जर्नी कमर थी, ये असमत साबर थी, ये सर इनामुर रहमान थे, ये सर सईद थे, ये सर शरीफुल मुजाहिद थे, ये मतीन साहब थे। और फिर दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर मैं बताता रहता हूँ। ये जोर से हंसता हुआ कैसर महमूद था। ये क्लीन शेव्ड स्मार्ट लड़का एजाजुद्दीन शाह था। ये आदिल इब्राहिम था। चलते चलते थके पाँव तो हम बैठ गए, नींद गठड़ी पे धरी, ख्वाब शजर पर रखा, और फिर मैं एल्बम को बंद कर देता। इससे पहले कि तकरीब आगे बढ़े, मैं एक इस तरह की तकारीब पजीराई में जो एक रस्म होती है कि साहिब किताब मेहमान खुसूसी को और साहिब सदर को अपनी किताब पेश करते हैं, तो मैं इसके लिए दावा करता हूँ जमाल मोहसिन साहब को
کہ وہ اپنی کتاب جو ہے تمام مہمانوں کو پیش فرمائیں. کتابیں بھی ویسے ہی دینے نا یا وہیں جاؤ تو ادھر ہی کھڑے ہو کر تو آگے تو جگہ ہے نہیں، اس کا مطلب وہ پیچھے سے جا کر کے کھڑے ہو کر دینا پڑتا ہے. آگے جگہ سر ان میں ہی کرتے ہیں فوٹو بنائیں نا. اب میں صاحب کتاب جناب جمال محسن صاحب کو مدعو کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنی اس کتاب کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. اس سے پہلے بھی ان کی 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور یہ ان کی تیسری کتاب ہے، لیکن اپنی ان 2 کتابوں کو یہ اپنی تخلیقی کتاب نہیں مانتے، حالانکہ وہ بھی بہت اہم موضوعات پر لکھی گئی ہیں. تو جمال محسن صاحب نہ صرف یہ کہ اس کتاب کے بارے میں کچھ بتائیں بلکہ اس کے کچھ اقتباسات بھی ہمیں سنائیں تو بہت مناسب ہوگا. بہت شکریہ عادل جعفری آپ کا. مجھے معلوم ہے آپ نے توہن کرہن ایکسیپٹ کیا نظامت کا، آپ عام طور پر نہیں کرتے ہیں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ آپ ذمہ داری سے کام انجام دیں گے اور آپ سے بہتر کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. تو آج کی تقریب ویسے تو میری کتاب کی ہے، لیکن مجھے جو زیادہ خوشی ہے وہ اس بات کی ہے کہ آج جو بھی یہاں ہیں، جو لوگ بھی ہیں یہاں پہ موجود، وہ میری زندگی کے کسی دور میں بہت قریب رہے ہیں. وہ چاہے میرے بچپن کا زمانہ جو شرف آباد میں گزارا، اس کے دوست بھی یہاں مجھے موجود ہیں، اور ایک ہمارے دوست عتیق اور خالد اور محمود عیق جو یہ بات کر کے گئے ہیں، یہ سب میرے شرف آباد کے دوست ہیں. پھر میرے ریڈیو اور ٹی وی کے دوست ہیں یہاں پہ. اس کے علاوہ یہاں پہ جرنلزم کے دوست ہیں جو آپ کے سامنے یہاں بیٹھے بھی ہیں اور انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں. تو کہتے یہ ہیں کہ آپ اگر 1 سال کے اندر 50 دوست بناتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک دوست کے ساتھ 50 سال تک تعلق رکھتے ہیں. تو میں نے وہ مشکل والا کام کیا ہے، بڑا کام کیا ہے کہ آج بھی میرے جو دوست 50 سال پہلے تھے وہ آج بھی میرے دوست ہیں اور میرے کانٹیکٹ میں ہیں. اور میں ان دوستوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ میری دوستی کا باغ چھوٹا سہی مگر
پھول سارے گلاب رکھتا ہوں، کم ضرور ہیں مگر جو دوست رکھتا ہوں لاجواب رکھتا ہوں۔ مختصراً میں بات یہ کروں گا کہ جیسا آپ نے دیکھا ہی کہ مختلف میرے مضامین جو ہیں اس میں وہ تقریباً 1974 کے سے شروع کیے تھے اور اب 2022۔ تو اس کے دو ادوار ہیں، ایک وہ دور جو میں نے یونیورسٹی کے زمانے میں لکھا جو 74 سے شروع ہوا اور میرے جانے تک 79 جنوری میں یہاں سے مائگریٹ کر گیا تھا، لیکن 1 سال تک میں لکھتا رہا۔ تو میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ ایک وہ دور تھا جو میرا یونیورسٹی کا دور تھا، اور دوسرا دور وہ ہے جو میرے بچے یونیورسٹی میں آ گئے، تو بیچ میں ایک 25 سال کا خلا ہے۔ لیکن جیسا آپ نے سنا کہ ظاہر ہے جو فائنینشیل فیلڈ ہے میری، انویسٹمنٹ ایڈوائزر اور اسٹاک بروکر والی، وہ میرا پروفیشن ہے۔ اس پہ میں نے 2 کتابیں بھی لکھی، باتیں پیسوں کی، جس کی رونمائی یہاں کی تھی، ایک 2004 میں اور ایک 2007 میں۔ وہ میرا پروفیشن تھا مگر یہ میرا پیشن ہے۔ ستم ظریفی تو یہ دیکھیے کہ 1978 میں نے ایک کالم لکھا، فقاہیہ کالم، جس کا عنوان تھا حب الوطنی سے چیچا وطنی تک، اور اس مضمون میں نے یہ لکھا کہ جی ہم کہیں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، ہم تو حب الوطن ہیں، ہم تو یہ ہیں، اور مطلب طنز و مزاح کے انداز میں نے لکھا۔ اور اس کے تقریباً 1 سال بعد میں امریکہ بیٹھا ہوں۔ تو یہ ایک ستم ظریفی ہے، لیکن بہرحال وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے کلاس فیلو تھے محمد حسین، جن کے اکسانے پر یہ میں نے پلان آنن فانن بنایا اور یہاں سے روانہ ہوا، اور پھر اس کے بعد وہیں کا رہ گیا۔ تو یہ نام جو رکھا ہے میں نے وہ اس طرح سے رکھا ہے کہ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا جنوری 2020 میں انسریکشن بہت مشہور، لیکن وہ ہوا تھا فوج ظفر موج کے ساتھ اور خاصا دھوم دھڑکا، لیکن میں نے جنوری 1979 میں ایک تنہا ایک دھرنا دیا تھا جو آج بھی چل رہا ہے وہ دھرنا۔ ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل ویلاگ اور بیلاگ کا دور ہے، لوگ جو ہیں وہ بہت سے بلکہ بزنس بھی کر رہے ہیں، بہت جن کے جو پاپولر ہیں ویلاگ اور بیلاگ، تو وہ ان کے پاڈ کاسٹ اور وغیرہ، وہ لوگ جو ہیں وہ مطلب خاصے ان کے فالوورز بھی ہیں۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ 1979 میں جب وہاں پہنچا تو ظاہر صحافت کا وہ کنٹینیوٹی ہے، وہ پہلا سال تھا، ابھی پڑھائی شروع نہیں ہوئی تھی، تو جو میرے 5-6 مہینے کی جو تاثرات تھے امریکہ کے بارے میں ان دنوں میں نے سی لاگ کیا۔ تو آپ پوچھیں گے وہ سی لاگ کیا چیز ہے؟ تو جناب وہ سارے تاثرات جو میرے امریکہ کے بارے میں تھے وہ میں نے لکھے، اور لکھ کے اس کو کیسٹ پہ میں نے ریکارڈ کیا اور میں نے پھر اپنی فیملی کو بھیجا۔ تو وہ سی لاگ اس زمانے میں ظاہر وہ تو پرسنل تھا، بزنس نہیں تھا، لیکن وہ آئیڈیا وہی ہے وی لاگ والا۔ عقیل عباس جعفری یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نظامت کر رہے ہیں، یہ ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ جس کو میں جانتا ہوں وہ ہے ان کی کوئز کے زمانے سے۔ نیلام گھر میں انہوں نے نہ جانے کتنے پرائز جیتے، اور ان کے جیسے اور لوگ بھی بہت سے تھے، اور ایک خاتون بھی کوئز میں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، ان کو یقیناً یاد ہوگا، جنہوں نے بہت انعامات جیتے، اور ان کو دیکھ کے میں نے ایک خاکہ لکھا تھا، جس میں خاکے میں جو تھیم تھا وہ یہ تھا کہ خاتون جب جیتتی ہیں تو ان سے وہ طارق عزیز صاحب پوچھتے ہیں بھائی کہ آپ کیا تاثرات ہیں، بڑی شرماتی ہیں، بڑی لاتی ہیں، بھائی کیا وجہ ہے آپ شرما کیوں رہی ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آج کا جو آئٹم میں نے جیتا ہے وہ میرے جہیز کا آخری آئٹم تھا، اس لیے میں شرم آ رہی ہے مجھے۔ I don't know, I think you remember the name, right? It's something like that, but I know. تو وہ میں نے اس وقت 1978 میں یہ خاکہ لکھا تھا، اور بہت سے خاکے لکھے تھے جو پی ٹی وی پہ کچھ نشر ہوئے، کچھ نہیں ہوئے، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں وہ دے کے اور پھر وہاں سے روانہ ہو گیا، تو
مجھے نہیں معلوم ہے کون سے نشر ہوئے, مجھے کچھ چیک ضرور آئے تھے جو میرے گھر کے ایڈریس پہ, جو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ انجوائے کریں. پھر دوسرا دور آتا ہے میرا, تقریباً سمجھیں کہ 12-15 سال پہلے میں نے پھر دوبارہ لکھنا شروع کیا طنز و مزاح کے اوپر, اور اسٹارٹ کیا. ہماری ایک آرگنائزیشن ہے وہاں پہ جہاں میں رہتا ہوں, لانگ آئلینڈ میں رہتا ہوں نیو یارک میں, تو اس کی آرگنائزیشن کا نام ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی آف لانگ آئلینڈ. اس کا ایکرونیم بنتا ہے پاکولی, جیسے پاکولا ہے نا تو ویسے پاکولی. تو پاکولی 15 سال سے ہم لوگ جشن آزادی کر رہے ہیں وہاں پہ ایک بہت بڑے پارک میں, آزان آباد پارک, بڑی خوبصورت جگہ ہے, اسٹیج بنا ہوا, سب کاؤنٹی کی طرف سے ہمیں ملتا ہے, وہ ہم کرتے ہیں بڑے. وہاں پہ یوں تو ہم بلاتے ہیں فنکاروں کو, یہاں سے بڑے بڑے فنکاروں کو بلاتے ہیں, سنگرس اور وغیرہ وغیرہ, اچھا شو ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ ایک لوکل پروڈکشن بھی ہم کرتے ہیں جس میں میرا خاصا ہاتھ ہے کہ میں اس میں یا تو خاکے, تو شروع میں نے کیا انارکلی کی اسٹوری سے, پھر ہیر رانجھا, پھر امیر خسرو, تو اس میں ڈانس بھی ہوتا ہے سب کچھ, اور نریشن میری ہوتی ہے, لکھا ہوا پوری کہانی ہوتی ہے. جو کہ چند برس پہلے میں نے شروع کیا, میں نے کہا کچھ میں لکھ رہا ہوں تو میرا اس کا کچھ مقصد ہونا چاہیے. تو پھر میں نے یہ کیا کہ ایسے موضوعات میں نے لیے, ایسے خاکے لکھے کہ جس کے اندر اس وقت کے جو حالات اوورسیز میں پاکستانیوں کے ساتھ یا یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, تو وہ پھر میں نے یہ کیا کہ جیسے سر سید قائد اعظم, پہلا والا جو تھا وہ قائد اعظم عالم ارواح سے تشریف لاتے ہیں, اور ان سے پھر ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میں ان سے سوالات کرتا ہوں اور ان سے باتیں کرتا ہوں. وہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں, سوالات پوچھتے ہیں, میں ان کو بتاتا ہوں آپ نے یہ پیغام دیا تھا لیکن دیکھیے عمل یہ ہو رہا ہے. تو طنز و مزاح کا وہ تھا. تو اس طرح سے کرتے کرتے تو پھر یہ ذرا بات اور باہر نکلی, تو وہاں ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے علی گڑھ الومنائی ایسوسیشن, جو انڈین مسلم انڈیا کے علی گڑھ والے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ سر سید کے اوپر کچھ لکھیے. تو ظاہر ہے سر سید ہمارے قابل بہت لیڈر, انہوں نے سارا ابتدا کی تمام پاکستان کی تعمیر میں جتنے رہنما تھے انہوں نے وہ بلڈ کیا اپنے وہاں. تو پھر میں نے سوچا کس طرح سے کرنا ہے, تو ان کے پیغامات اس نے سب کو اکٹھا کیا, ریسرچ کی, اور کر کے میں نے وہ ایک 15 منٹ کا خاکہ میں نے تیار کیا. اور تو پہلی ریہرسل بھی ہو گئی. اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ یار یہ اتنا سنجیدہ میسیج ہے اور اس میں لوگ بور ہوں گے اور وہ آئی فون وغیرہ دیکھنا شروع کر دیں گے. تو میں نے پھر اس کے اندر ایک ٹوسٹ دیا, اور ٹوسٹ یہ تھا کہ وہ جو ایک ہندوستانی ہے, ایک تو سر سید اور ایک گاندھی جی ہیں جو بات چیت کر رہے ہیں, لیکن اس کے بعد میں نے ایک بہاری کا کیریکٹر ایڈ کیا جسٹ ٹو میک اٹ انٹرسٹنگ. وہ خاکہ یہاں پہ موجود ہے, اور میں ہے تو 15 منٹ کا, لیکن میرا خیال ہے ہم 5-6 منٹ آپ کو دکھا کے صرف آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ وہ کیسا ہوا. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ میں نے ایکٹنگ بھی کی ہے, جو بہاری کا رول ہے وہ میں نے خود کیا ہے. اور اب آپ دیکھیں اس کے اندر تو ساؤنڈ ہے تیار, اوکے, تو پورا دکھائیں, آئی ڈونٹ نو, اگر آپ دیکھیں فل اسکرین کر دیں اس کا.
मगर वही अजाम ट्रैफिक से तो मेरी भी जान जाती है। जी हाँ, बड़े मजबूत जिगर के मालिक हैं। किसी ने इनको बेकारी कहा तो किसी ने फरंगियों का हवाली। सर, इन बेहुदा अल्काबात से आपको कौन दुख नहीं लगे? कतई नहीं भाई, मैं अपने लिए नहीं कौम के लिए भीख मांगता था, अपनी नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए भीख मांगता था। लोग मुझे किसी भी नाम से पुकारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहम्मद मियां, आपका मुकम्मल इसमें शरीफ क्या है? नहीं, हम तो बिहार शरीफ से हैं ना। मेरा मतलब है आपका पूरा नाम क्या है? हमारा नाम, हमारा पूरा नाम है मोहम्मद अली गजनवी। मोहम्मद अली, बड़ा प्यारा नाम है, मगर ये गजनवी क्या है? सर, हमारा ताल्लुक बिहार में पटना के करीब एक बहुत तालीम याफ्ता गांव दिसना से है ना। नामा सैयद सुलेमान नबी हमारे गांव ही में पैदा हुए थे। अम्मा और अब्बा ने भी उधर ही जन्म लिया था, तो बस हम अपने नाम के साथ गजनवी रख लें। माशा अल्लाह, खैर नाम कोई भी हो, हम तो काम की कदर करते हैं। अल्लामा सैयद सुलेमान नबी ने हमारे अलीगढ़ तहरीक के साथी अल्लामा शिबली नौमानी के शागिर्दी में बहुत सी तस्नीफी काम किए। अरे मैंने तो अपनी सत्याग्रह मूवमेंट, नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रॉल, इसका आगाज भी बिहार से ही किया था। हम जाने हैं कि आप दोनों हिंदुस्तान के बहुत बड़े रिफॉर्मर हैं, यानी कि आपकी तहरीक का थीम था अदम तशद्दुद और सैयद आपका था तालीम। हम एक तो बात नहीं समझे कि आप जदीद तालीम को मुताबिक कराने के लिए काहे इतने फिक्रमंद थे? अरे मोहम्मद मियां, पढ़ोगे तो रहोगे। अगर हमने नौजवानों को से आरास्ता न किया तो अच्छी नौकरियां उनसे दूर हो जाएंगी और ये दर उनके नजदीक आ जाएंगे। अनपढ़ नौजवान जुल्लुखार होकर साथ और हम बूढ़े टोपे उनके साथ सबके साथ। सैयद अहमद तो नए हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने जान दिया था कि इंग्लिश जुबान और मॉडर्न साइंस में महारत हासिल किए बगैर सियासी और समाजी पहचान बरकरार नहीं रखी जा सकती। मोहम्मद एंग्लो पॉलिटिकल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया, इसका सेहरा भी इन्हीं को जाता है। इनके आला मियार के सबब लोगों ने ANU को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट का, और आज भी ANU हिंदुस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में शामिल है। जी गांधी जी, आप तो ANU का विजिट भी किए थे और आप पहले हिंदुस्तानी थे जिसे वहाँ की स्टूडेंट यूनियन से बाहयात मेंबरशिप का एजाज हासिल है। और आज अलीगढ़ अलमनाई को आपकी मौजूदगी का शर्फ हासिल है। आप दोनों की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हम कुछ बुद्धियां सुलझाने की कोशिश करेंगे। मियां, कैसी बुद्धियां? सर, कुछ लोग बोले हैं कि आप फरंगी एजेंट थे, फरंगी हमले हिंदुस्तान पर काबिज था। आपने उन्हें मार भगाने के बजाय न सिर्फ उनका साथ दिया बल्कि उनकी गोली सीखने के लिए बहकाया भी। देखो, गदर के बाद ये अपने खानदान की जान माल लेकर कौम की बर्बादी का गम नहीं था, लेकिन जज्बात की रौ में कहने और हुकूमत वक्त से टकराने की बजाय उस वक्त सूझबूझ से काम लेने की जरूरत थी। हिंदुस्तान में बरतानी हुक्मरान और फौज के सामने नहीं दिख सकते थे। जंग तलवार और तोप की थी, तोप के सामने तलवार नहीं गिर सकती थी, तोप का मुकाबला
صرف تعلیم ہی سے کیا جا سکتا تھا، معاشی بدحالی اور تہذیبی گراوٹ صرف تعلیم ہی کی مدد سے دور کی جا سکتی تھی، اور مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار بھی صرف تعلیم ہی کے ذریعے بحال کیا جا سکتا تھا۔ بھائی دیکھیے، قوم کی ترقی کے دو اسٹیپس ہیں۔ ایک، قوم کی سمجھے جو ذلت اور خرابی میں مبتلا ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر وہ قوم اس ذلت سے نکلنے کی کوشش بھی کرے۔ سید احمد جی نے یہ جان دیا تھا کہ ترقی کی جڑ ماڈرن تعلیم کے خزانوں کو قابو کرنے میں ہے۔ تعلیم کے بغیر قوم بھوکی، بہری اور اندھی ہوتی ہے۔ میں نے اس لیے سید جی کو تعلیم کے نبی کا خطاب دیا تھا۔ شکریہ گاندھی جی، یہ تو آپ کا بڑکپن ہے کہ آپ ایک دوسرے لیڈر کی بڑائی کو مانے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اپنے مذہب والے اور مسلک والے علماء ہند بھی ان پر مغربی خیالات اور اخلاقیات کو ہوا دینے کا الزام لگاوے ہیں، بلکہ کچھ آدمی لوگ تو ان کو کافر بھی کہے ہیں۔ بیٹا، ایک اللہ کا قانون ہے اور ایک اللہ کا۔ فرض کریں کہ میں بدعقیدہ ہوں، اگر ایک کافر آپ کی قوم کی بھلائی کی کوشش کرے تو کیا آپ اس کا ساتھ نہ دیں گے؟ مسلمانوں کی ترقی کے لیے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کا جاننا بھی ضروری تھا۔ جدید علوم اور عالمگیر معلومات کو اپنے بس میں کرنے کے لیے انگریزی زبان کا سیکھنا لازمی تھا۔ اسی لیے میں نے سائنٹیفک سوسائٹی کے ذریعے جدید تعلیم کے علوم میں ترجمے کروائے۔ جی، سید جی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو حکومت میں حصہ لے۔ علی گڑھ یونیورسٹی اور محمدن سول سروس فرنٹ ایسوسی ایشن کا یہی مقصد تھا کہ سول سروسز میں زیادہ سے زیادہ مسلمان آگے آئیں اور سرکار کا حصہ لیں۔ گاندھی جی، مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو آپ کی زبان سے سر سید کے کاموں کی تعریف سن کر بہت کچھ محسوس ہو گیا ہے، مگر گاندھی جی یہ تو بتائیے کہ ان کی کوشش ہندوؤں کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں تھی۔ خطرے کی گھنٹی کیسے؟ یہ وہ ہندوستان میں واقع ہے جہاں ہندوستان کے تمام گرم لوگ برابر کے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ ہندوستانیوں، ہندوستان ایک دلہن کی مانند ہے جس کی دو رسیلی اور خوبصورت آنکھیں ہندو اور مسلمان ہیں۔ اگر وہ دونوں آپس میں بات کریں گے تو دلہن اہم نہیں ہو جائے گی۔ سید جی، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ میں نے بھی اسی وچار کو اس طرح کہا تھا، ہندوستانی اگر آپس میں جھگڑتے اور آنکھ کے بدلے آنکھ کا مطالبہ کرتے رہے تو پھر پورا ہندوستان اندھا ہو جائے گا۔ سید جی، آپ ہندو مسلم ایکتا کے جب بھی ہوں گے۔ میں نے جب ANU کی یاترا کی تو مجھے آپ کے دل میں دھرم کے احترام کا پتہ چلا۔ مجھے پتا گیا کہ سید جی نے اپنے کالج میں مادر کے گوشت پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور سائنٹیفک سوسائٹی میں بھی ہندو، مسلمان اور عیسائی سب مل جل کر کام کرتے تھے۔ میری رائے میں سیاسی اور قومی معاملات میں مذہبی اختلافات کا کوئی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ہندوستان میں ہندو مسلم کے درمیان تعاون، مفاہمت اور بھروسہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں مشرق اور مغرب کے درمیان یونیورسٹی کے ذریعے ایک پل کا کام کروانا چاہتا تھا۔ یہ سب تو ہم جانے ہیں کہ آپ جو کتابہ لکھا تھا، کیا نام تھا؟ ہاں، اسباب بغاوت ہند۔ اس میں آپ نے مسلمانوں کو بغاوت کے الزام سے بچنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس میں آپ بولے کہ انگریزوں کی مویشیاں دراصل بغاوت کی وجہ تھی۔ آپ نے مسلم اور برٹش دونوں کی کمزوریوں پر روشنی ڈالی اور ایک دوسرے کے بیچ
गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की। इसके अलावा तबय्युल कलाम ने तौरेत और इंजील को इस्लामी नुक्ता नजर से समझने की कोशिश की। बात अहमदिया में तो आपने कमाल ही कर दिया, इस्लाम की पोजीशन मुकम्मल तौर से साफ कर दी। मुसलमानों के पीछे रह जाने की वजह मॉडर्न तालीम की कमी, धार्मिक कट्टरपन है। सैयद जी ने अपने रिसाले तहजीबुल अखलाक के जरिए सियासी और समाजी मसाइल पर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू पेश किए और मुसलमानों की तरक्की और इस्लाह के लिए कई मज़ामीन भी छपवाए। तालीम का दायरा महज दीनी ही नहीं, बल्कि इसके साथ दुनियावी मॉडल तालीम भी है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी भी शामिल है। मैंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तर्ज पर स्कूल कायम किए, जहाँ इस्लामी अक़दार के साथ साथ जदीद तालीम के तकाज़े भी पूरे किए। ये सब बात तो हमें समझ में आ गई, एक तो बात समझ नहीं आई कि जब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विलियम मायूर ने इस्लाम और रसूल पाक के बारे में घटिया बात लिखी, तो आपने बहुत गैर हिंदुस्तानी और गैर मुसलमानी रवैया इख्तियार किया। न कोई पुतला जलाया और न ही किताब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया, बल्कि जवाबी मज़ामीन पर मबनी एक ठो किताबचा खतबात अहमदिया लिख कर छोड़ दी। बेटा, अगर पुतला जलाने के साथ हम अपने गम गुस्से और नफी ख्यालात भी जला सकते, तो फिर पुतला जलाना बामकसद होता। मगर पुतला जलाने से दूसरों के गुस्से की आग की शोरों की तरह भड़क उठती है, नतीजतन सारे के सारे भस्म हो जाते। विलियम मायूर का मकसद मुसलमानों में निकाब डालना था। मैंने इन्हीं बुनियाद पर बात अहमदिया में उन तमाम एतराज़ात के जवाब दिए और दलाइल से साबित किया कि इस्लाम अपने अकायद किसी पर जबरन आयद नहीं करता। सैयद जी दरअसल अहिंसा के पैरोकार थे। An ounce of patience is worth more than a ton of peace. सैयद जी ने न सिर्फ पेशेंस दिखाई, बल्कि मॉडर्न एजुकेशन की प्रीचिंग भी की। आप हिंदुस्तान को इंग्लैंड वालों की तरह हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखना चाहते और आप सोशल हार्मनी के एडवोकेट। आपने हर हिंदुस्तानी को बाख्तियार बनाने की कोशिश की और सोसाइटी के मुख्तलिफ हिस्सों में इत्तेहाद भाईचारे का मकान। हमको इस पर एक बहुत शेर याद आ रहा है, दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया है। गांधी जी साहब, हमारा दिल चाहे है कि आप दोनों हिंदुस्तान तशरीफ लावें और आज के इन इंतहा पसंदों और मजहबी तफरकाबाजों को अपने पैगाम से एक बार फिर याद दहानी करावें कि कौम की तरक्की की पहली जरूरत मुल्क के तमाम शहरों में इत्तेहाद और भाईबंदी है। अरे पगले, हम दोनों तो अपने काम और पैगाम कौम को दे चुके हैं। अब ये तुम्हारा और आप सबका काम है इस पैगाम को फैलाएं, नफरतें कम करें और मोहब्बतें बढ़ाएं। मोहम्मदिया, हम तो बस तुम्हारे इस बात पर यहाँ मिलने आ गए, मगर वापस ऊपर से ऊपर जाने का सोचकर ही एंजाइटी का दौरा महसूस होने लगा। और मेरी आत्मा भी आकाश के उस पार जाने के लिए बेचैन हो रही है। गांधी जी साहब, आप दोनों हिंदुस्तान को अंधेरे से निकाल कर उजाले में लाए हैं। कौम ने सोच विचार पैदा की है, बराबर वतन को साथ लेकर चलने का आदर्श दिया है। आपका पैगाम आज भी
शपथ छोड़ जाऊंगा। आई होप कि यू एंजॉय। थोड़ा सा चूँकि वीडियो पे है और थोड़ा सा ड्राई भी मौजूद था, तो हो सकता है कि अटेंशन थोड़ा सा लूज़ किया होगा। और जाहिर है मेकअप और गेटअप जो आपने देखा वो जाहिर है वो सब इल्यूजन के लिए था। वो दाढ़ियाँ और वो सब अमेज़ान से ख़रीदी गई थी, क्योंकि जाहिर है हमारे पास इतना बजट नहीं था, तो लिहाजा उसको दरगुजर अगर आप कर दें तो मेरे ख्याल में एक खाका था, मैसेज पहुंचाना था मेनली, आपने अगर देखा हो मैसेज। तो ये खासा टाइम हो गया, तो मैं इरादा था कि कुछ इक़्तिबासात पढ़ता। अकील अब्बास कहते हैं कि कुछ पढ़ दो छोटा सा, तो मेरे पास 3-4 हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक पढ़ के और फिर उसके बाद मैं अपने मेहमानों, 2 ही मेहमान रह गए हैं, तो उसके बाद वो तकरीब जो है वो कंक्लूड कर देंगे हम। तो मैं सिर्फ जो पढ़ने वाला था मैं उसका सिर्फ नाम ले लेता हूँ ताकि जब आप देखें तो पढ़ें उसको। एक था अमेरिकन बीवी का फ़ायदा, जो मैं नहीं पढ़ूँगा, आप खुद पढ़िएगा, वरना ये भी हो सकता है कि यहाँ वो समझें कि मैं कोई तबलीग कर रहा हूँ उसके बारे में, तो ऐसी बात नहीं है, बस तंज़ मज़ा है। एक और आर्टिकल जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने कोई तकरीबन 2010 में लिखा था, आफ्टर मेरे साथ एक वारदात हुई थी यहाँ पे, बेटी के साथ आया था बड़े अरमान लेके कि मैं उसको गांव दिखाऊंगा, ये बकरा पीढ़ी लेके जाऊंगा और फलां, लेकिन वो एक ऐसी वारदात हुई कि वो कुछ भी नहीं हो सका। उसके जाने के बाद, वापस पहुँचने के बाद मैंने एक कॉलम लिखा था, उसका उन्वान है पाकिस्तान का, मतलब दोबारा आने का जो प्लान मैंने बनाया, तो मैंने वो कॉलम लिखा, उसका उन्वान था पाकिस्तान का दौरे कबड्डी। तो वो एक है, लेकिन लंबा आर्टिकल है, लिहाजा वो भी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो आप खुद देखिएगा। मैं एक छोटा सा है दरगाह या बारगाह, वो मैं पढ़ देता हूँ, वो 1 सफ़े से भी कम का है। तो ये मैंने बज़्म ख़याम के हम तहत ज़ेर तमाम एक करते हैं शाम कहा हर साल में कभी 2 कभी 3, उसमें मैंने पढ़ा था, ये मुख्तसर सा है। तो मैं कहता हूँ कहने को तो हम फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, लेकिन कभी कभी हमें अपने ऊपर एक मौलवी, इमाम या ख़तीब होने का गुमान होता है। मसलन मौलवी कहता है कि नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें क़ब्ल इसके कि आपकी नमाज़ पढ़ी जाए। हम कहते हैं कि क़ब्ल इसके कि आपकी कमर अंदर और तोंद बाहर हो, आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीद लें। मौलवी अगर आखिरत को बेहतर बनाने की तरकीब बताता है, तो हम लोगों को ज़िंदगी के आखिर वक्त को बेहतर यानी रिटायरमेंट और बुढ़ापे की ज़िंदगी की मंसूबा बंदी करने पर जोर देते हैं। लेकिन एक हालिया रिपोर्ट देखने के बाद हमें अफसोस हुआ कि हमने मौलवी या पीर का पेशा क्यों इख्तियार न किया। रिपोर्ट में बताया गया था कि कौमी एयरलाइन, स्टील मिल्स और पूरी कौम खसारे में जा सकती है, लेकिन मज़ार और दरगाह ऐसी इंडस्ट्री है कि जिस पर हाज़ा मिन फज़ल रब्बी सातों दिन 24 घंटे छाया रहता है। और अगर ये दरगाह बंगाली बाबा, करंट बाबा या सरकट बाबा की हो, तो वो मिस्कीन ख़वातीन जो मुरादों की खातिर दरगाह जाने के बजाय, बारगाह जाने के बजाय दरगाह जाती हैं, तो गोया उन पीरों को हूरें भी इसी दुनिया में मुयस्सर आ जाती हैं। सितम ज़रीफ़ी यह है कि इन बंगाली बाबा, करंट बाबा, सरकट बाबा जैसे पहुँचे हुए लोगों की मुल्क में मौजूदगी के बावजूद लोड शेडिंग में कोई कमी नहीं आई। अगर उनमें वाकई करंट का मौजज़ा है, तो फिर उन्हें खंभों पर बांध कर बिजली की कमी पूरी की जानी चाहिए। तो मैं अब इजाज़त चाहूँगा आपसे, थोड़ा सा मैंने आपको सुना दिया, बाकी ये है कि किताब है। मैं चाहूँगा कि किताब इतनी तादाद में नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अगर अपनी ईमेल एड्रेस मुझे वहाँ लिखें, वहाँ टेबल पे है, लिख दें। आपको मैं अपनी ई बुक जो है वो ईमेल करूँगा
आपके ईमेल एड्रेस पर, तो आप आराम से उसको जब चाहें आप खोल करके पढ़ सकते हैं। तो वहाँ ज़रूर लिखवाना ना भूलिए अपना, एक तो वैसे भी कांटेक्ट में रहना चाहिए, उसमें सेल नंबर है, ईमेल एड्रेस है और आपका नाम है, ताकि मैं भी याद रखूँ कि आप यहाँ थे और आपसे कांटेक्ट में रहूँगा मैं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल मोहसिन साहब। और अब मैं जिस शख्सियत को दावत दे रहा हूँ उनके तारुफ के लिए भी अल्फाज की ज़रूरत नहीं है, सब लोग उनसे वाकिफ़ हैं, सब लोग उनको जानते हैं। आज की हमारी इस तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी नीलोफर अब्बासी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त इस तकरीब की निज़ामत अकील अब्बास जाफरी ने शुरू की, उसी वक्त ये तकरीब मोतबर हो गई और इसके एतबार में मज़ीद इजाफ़ा हुआ आप सब की मौजूदगी से। मुझे नहायत खुशी है कि आज यहाँ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं कि जिनसे कुछ से मैं बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा मुझे जमाल की ये बात बड़ी पसंद आई कि ना सिर्फ वो अपने साथियों को साथ लेके चलते हैं, बल्कि जो उनके अहले खाना हैं, जो उनका ख़ानदान है, जो उनके अज़ीज़ हैं, वो उन्हें भी उतनी ही अहमियत देते हैं और उतनी ही इज़्ज़त देते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि सभी मोहसिन साहब तो इस दुनिया में नहीं मौजूद हैं, लेकिन उनकी बेगम हमारी नुसरत भाभी मिसेस मोहसिन यहाँ मौजूद हैं और ख़ुद जमाल का समधियाना होने वाला जो है वो माशाल्लाह लॉन्ग आइलैंड से यहाँ न्यूयॉर्क से आए हुए हैं, उनसे मिलवाया। तो बड़ी मुझे इस बात की खुशी है कि जमाल रिश्तों को, दोस्तियों को निभाते हैं। मुझे तारिक से मिल के बड़ी खुशी हुई, उन्हें इतने अरसे बाद देख के। आपके बाल अब भी घने हैं, ऐसी कोई फ़िक्र की बात नहीं है, बाल खासे मौजूद हैं। दूसरे तारिक को शायद याद हो या ना याद हो, धानक में एक ज़माने में टाइटल पे छपना बहुत बड़ी बात थी और इन्होंने मुझे टाइटल पे छापा था। सर्वर सुखेरा साहब थे उस वक्त आपके एडिटर या चीफ, और धनक में मैंने लिखा भी। तो मुझे आज तारिक को देख के भी बहुत खुशी हुई। और हमारे रफ़ी राज साहब जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, माशाल्लाह न्यूयॉर्क में इनसे मुलाकातें रहीं और आज इनको देखा यहाँ। अभी आप सुनेंगे हमारी डॉक्टर फातिमा हसन मौजूद हैं, बहुत अच्छी शायरा हैं माशाल्लाह, बहुत लायक फायक। और हुमैरा अतहर हैं जिन्होंने ये किताब छापी और वाकई वो काबिल तहसीन है कि उन्होंने बहुत कम वक्त में ये किताब छापी और बड़े एहतमाम से छापी है। डॉक्टर साहब मौजूद हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोले। आसिफ अंसारी हमारे मौजूद हैं पीटीवी के। देखिए सब बातें तकरीबन जमाल के लिए लोग कर चुके हैं, इसलिए वो बातें तो मैं दोहराऊंगी नहीं, लेकिन बहरहाल यहाँ खड़ी हूँ तो कुछ तो बोलूँगी। हिंदुस्तान के सूबे बिहार के कस्बे बिहार शरीफ में एक गांव है देसना, जहाँ के सैयद मोहम्मद हुसैन उर्फ हुस्सी मियाँ की हवेली के बड़े चर्चे थे। हुस्सी मियाँ एक वसी व अरीज़ जागीर के मालिक थे, फलाही कामों में फराग दिल मगर इंतज़ामी उमूर में इंतहाई सख्त और अपनी इन्हीं खूबियों की बिना पर 1946 के हौलनाक मुस्लिम कुछ फसादात में ये गांव खून खराबे से महफूज रहा। मोहम्मद हुसैन के बड़े बेटे मोहम्मद मोहसिन थे, जिन्होंने अपनी औलाद को हुसूल ज़र की नहीं हुसूल इल्म की तरगीब दी और औलाद ने भी उनको मायूस नहीं किया। सभी मोहसिन, इकबाल मोहसिन, अफजाल मोहसिन और जमाल मोहसिन, ये उनके नरीना औलाद थे। अपने अपने शोबों में नाम कमाया और अपने वालिद मोहम्मद मोहसिन का नाम रोशन किया। जमाल मोहसिन माशाल्लाह खुश जमाल हैं, खुश बयान हैं, खुश अखलाक हैं। जैसा आपने सुनाई कि कराची यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया और उसी दौरान सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़
آغاز بھی کر دیا. مختلف رسائل اور اخبارات میں ان کے لیے گئے انٹرویوز چھپے اور میرے خیال میں میرا بھی کوئی پہلا دوسرا انٹرویو تھا ان کی صحافتی کیریئر کا. تو یہ اعزاز بھی میرے حصے میں آتا ہے کہ انہوں نے میرا انٹرویو بہت اچھا شائع کیا تھا. آج بھی نیو یارک میں قیام پذیر ہیں اور امریکہ میں دائمی دھرنا تو یہ دے ہی چکے ہیں اور آج تک دے رہے ہیں اور اس کی وضاحت بھی کافی ہو چکی ہے. میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. بزم خیام کے روح رواں ہیں جیسا انہوں نے خود بھی ذکر کیا. بہت اچھے پروگرام کرتے ہیں اس کے تحت. اپنے بڑے بھائی سبی محسن صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جمال نے بھی طنز و مزاح سے بھرپور تحریروں کا سلسلہ شروع کیا جن کا مجموعہ امریکہ میں دائمی دھرنا کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے. ہنسنے ہنسانے مسکراہٹیں بکھیرنے کا سلسلہ اتنا ہی قدیم ہے جتنی اس دنیا کی خوشیاں اور غم پرانے ہیں. آج کے مشینی دور میں انسان خود ایک پرزہ سا بن کر رہ گیا ہے. تفکرات میں گھر کر ہنسنا مسکرانا قہقہے لگانا بھول سا گیا ہے. ایسے میں کسی کی کوئی بات کوئی تحریر چاہے کیسی ہی ہو دکھ سے مکمل نجات نہ دلا سکے مگر اسے ہلکا ضرور کر دیتی ہے. یہی احساس جمال کی تحریریں پڑھ کر ہوتا ہے. جمال نے قلم کی حرمت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا. کسی کو تضحیک کا نشانہ نہیں بنایا, کسی کی دل آزاری نہیں کی. اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کسی اور کا قد نیچا کرنے کی کوشش نہیں کی. اور کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت ہوتی. تو آپ نے سن ہی لیا کہ ہماری میرلین بہت پیاری سی ان کی وائف ہیں اور ہماری ملاقات ان سے ہوتی رہتی ہے. دوسری جو خاکہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے تھے یہ میں نے لائیو دیکھا تھا آئزن ہاور پارک میں نے لائیو دیکھا ہوا ہے وہ اور باقی بہت اچھا پرفارم کیا تھا جمال نے. کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن اب وہی بات ہے کہ باتیں میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں. ایک بات ضرور کہوں گی دیس نبی کے حوالے سے, وہ جو اس میں جمال کہہ رہے تھے کہ یہ دیس نبی کیا ہے. تو ایک دیس نبی صاحب جو تھے جس وقت مطلب ہم ریڈیو میں آئے اور شروع کیا اسٹوڈیو نمبر 9. اچھا ریڈیو ایک ایسا ادارہ تھا کہ جہاں سے آپ اگر داخل ہو جائیں تو بہت کچھ سیکھ کے نکلتے تھے. ایک انسٹیٹیوشن کہنا چاہیے. تو ریڈیو پہ جو بولنے لگتا تھا یا اسٹوڈیو نمبر 9 میں حصہ لینے لگتا تھا وہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی. وہ دیس نبی صاحب ڈان میں تبصرہ لکھتے تھے ہر ہفتے اسٹوڈیو نمبر 9 پہ خاص طور. تو وہ میں جس ڈرامے میں ہوتی تھی بہت تعریف لکھتے تھے. تو ایک دن میرے بڑے ماموں ڈاکٹر اسلم فروغی انہوں نے مجھے ریڈیو کی باؤنڈری میں ملوایا. کہنے لگے یہ سبی محسن صاحب ہیں ہمارے دوست اور یہ ڈان میں لکھتے ہیں دیس نبی کے نام سے. میں نے کہا دیس نبی آپ ہیں؟ کہنے لگے جی. میں نے کہا آپ میری اتنی تعریف لکھتے ہیں؟ کہنے لگے آپ تعریف کے قابل کام کرتی ہیں, جس دن برا کام کریں گے اس دن برائی بھی لکھوں گا. تو دیکھیں مطلب مجھ سے اکثر ان کی آتے جاتے ملاقات ہوتی تھی, سلام دعا ہوتی, لیکن انہوں نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا جی میں تو کرٹک ہوں, میں نقاد ہوں. جبکہ وہ اسٹیشن ڈائریکٹر تھے, بہت بڑے پوسٹوں پہ رہے وہ ریڈیو پاکستان میں, لیکن کبھی بھی کوئی کہنا چاہیے کوئی غرور کوئی ایسی بات کہ جس سے یہ احساس ہو کہ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے. جبکہ آج کل ہم سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا بھی نام پالے شہرت پالے تو اس کی آنکھیں سر پہ چڑھ جاتی ہیں. لیکن یہ ان کی خاندانی روایت تھی, ان کی گھریلو تربیت تھی اور خود ان کی شخصیت کا ایک حصہ تھی. اور یہی خوبیاں جینز میں سمجھتی ہوں جمال میں بھی آئی ہیں. بس آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. بہت بہت شکریہ. نیلوفر صاحبہ نے بہت اختصار سے کام لیا, حالانکہ جب وہ گفتگو کرتی ہیں تو دل چاہتا ہے کہ بس وہ بولتی رہیں اور ہم سنتے رہیں. اتنی خوبصورت آواز ریڈیو پاکستان کے توسط سے جو اپنے سامعین تک پہنچتی رہی, آج وہ ہمارے درمیان تھی. اور اب میں دعوت دوں گا صاحب صدر رفیع الدین راز صاحب, وہ بھی امریکہ سے تشریف لائے ہیں. اور آج جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ آدھے سے زیادہ ہمارے جو مقررین تھے وہ ہیں سب پاکستانی, لیکن آج کل چونکہ امریکہ میں مقیم ہیں
तो वो अमेरिका से आए हुए मेहमान कहलाते हैं। हालांकि एक दफ़ा इरशाद आफरीन ने टोका था, किसी तकरीब में उनको बुलाया गया कि अमेरिका से आई हुई मेहमान शायरा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये कहें कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी शायरा, मैं अमेरिका से आई हुई अमेरिकी शायरा नहीं है। लेकिन रफ़ीउद्दीन राज साहब अल्लाह करे ऐसा हो। जमाल मोहसिन साहब, इकबाल मोहसिन साहब, अंसारी साहब, नीलोफर अब्बासी साहबा, फातिमा हसन साहबा, हमारा सर तालिब साहब और अपने अकील अब्बास जाफरी साहब और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन महफ़िल, मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि आज जब अपने इनके बाद जमाल मोहसिन साहब पर आज भरपूर गुफ्तगू होगी, इनकी शख्सियत का मुकम्मल तौर पर अहाता किया जाएगा, और ऐसे ही हुआ। आपने देखा अभी नीलोफर अब्बासी साहबा ने या फातिमा हसन साहिबा ने जो कुछ भी कहा, नीलोफर अब्बासी साहब ने एक बात की कि कुछ लोगों को देख के अंदाज़ा होता है कि भाई यहाँ इनके स्टेज पे बैठने की वजह से ये महफिल जो है बावकार हो। तो मैं कहता हूँ कि महफिल के बावकार तो हो जाती है बिलाशुबा। फातिमा हसन साहब बैठी हुई है, हमारा बैठी हुई है, नीलोफर हैं, अकील अब्बास जाफरी बैठे हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए कि इसके वक़ार में जो हकीकी इजाफा होता है वो तहरीब याफ्ता सामीन की वजह से होता है। तो ये तहरीब याफ्ता सामीन की मौजूदगी की वजह से भी हाँ इसमें एक चीज़ होती है। तो वैसे ही हुआ, इन पर गुफ्तगू हुई, अहाता किया गया तमाम हर तरह से। मैंने मुख्तसर मज़मून है क्योंकि फ़काहिया किताब पे है, तो मैंने अपने मज़मून को का मिजाज फ़काहिया ही रखा है, तो देखिएगा तो इसीलिए तो उम्मीद है कि तो उर्दू अदब की नई बस्तियों में शुमाली अमेरिका को अब एक बुलंद मुकाम हासिल है और इनमें न्यूयॉर्क एक ख़ास अहमियत का हामिल अदबी मरकज़ है। यहाँ कई तंजीमें हमारे अदब और सकाफ़त के फ़रोग़ में बरसों से मसरूफ़ अमल हैं। गुज़श्ता 40-45 साल से छोटी बड़ी अदबी तकरीबें हो रही हैं जिनमें शायरी को एक ख़ास अहमियत हासिल है। मैंने 40-45 लिखने के बावजूद साल लिखा है, सालों नहीं लिखा, जमा का फ़िग़ा इस्तेमाल नहीं किया। जब मैं गुरेज़ करता हूँ, मैं जब भी सालों लिखता हूँ मुझे अपने तीनों साले याद आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं उमूमन सालों लिखने से गुरेज़ करता हूँ तो लिखता हूँ। बरसगीर का शायरी कोई काबिल ज़िक्र शायर व अदीब हो जिसे वहाँ की तंजीमों ने न बुलाया हो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगहों की तंजीमों ने इस अदबी मंजरनामे को बड़ी खूबसूरती से उजाड़ रखा है। यहाँ हर तरह का अदबी काम हो रहा है, शायरी, अफसाने, नावल, तनकीद, तराजीम, ड्रामे और इससे शो वगैरह का सिलसिला हनूज़ कायम व दायम है, जिसके सबब वहाँ बसने वाले बड़े सग़ीर के लोगों का अपनी तहज़ीब व सकाफ़त से एक राहत बख्श रिश्ता कायम है। वहाँ की अदबी तंजीमों का ये अमल इबादत से कम नहीं, और जो लोग इस मुक़द्दस इबादत में शामिल हैं उनमें एक नाम जमाल मोहसिन साहब का है। जमाल मोहसिन साहब जो बज़्म सजाते हैं उसका रंग ज़रा जुदा है, और यही जुदागाना रंग इन्हें दूसरों से अलग करता है। ये शाम कहक़ा के नाम से बज़्म सजाते हैं। वैसे तो मुशायरों में भी मदाहिया शायर सामीन को हंसाते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर मुशायरा संजीदा शायरी के ज़ेर असर ही रहता है। जमाल मोहसिन साहब की महफिल में संजीदा शायर के दाखिले पर तो कोई पाबंदी नहीं, संजीदा शायर के दाखिले पर तो कोई पाबंदी नहीं, लेकिन संजीदा शायरी का दाखिला सख्त ममनू है। लिहाजा उनकी बज़्म में संजीदा शायर को भी गैर संजीदा होकर बैठना पड़ता है। मैं जब भी उनकी महफिल में शरीक हुआ अपने आप को गैर संजीदा महसूस करता रहा। जमाल मोहसिन साहब बहुत एहतमाम से अपनी महफिल सजाते हैं। सिर्फ पुरतकल्लुफ़ डिनर ही नहीं बल्कि इनकी बज़्म में सिन्फ़ नाजुक की भी नज़र अफरोज़ तादाद मौजूद होती है। इनकी अमेरिकन बेगम भी पाकिस्तानी लिबास में जलवा अफरोज़ होकर बज़्म को मज़ीद दीदाज़ेब बना देती हैं। बेशतर लोग अपनी बेगमात के साथ शरीक होते हैं। बेगम साथ वाली कुर्सी पर बैठी होती हैं, फिर भी शौहर हज़रात खिलखिलाकर हंसते और कहका लगाते हुए दिखाई देते हैं। किसी के चेहरे पर
بیگم کا ذرا سا بھی خوف نہیں ہوتا. ہاں، بیویاں بھی شوہر کو خوش دیکھ کر بظاہر خوش ہو رہی ہوتی ہیں. بباطن اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ دلوں کا حال تو وہی بہتر جانتا ہے. شوہروں کے قہقہ لگانے کے اس عمل میں ان کی سرکشی کا دخل ہوتا ہے یا بیویوں کی اجازت کا، اس کا اندازہ ہم کوشش کے باوجود اب تک نہیں لگا سکے. بہرکیف میاں بیوی کے خوشگوار تعلق کا یہ منظرنامہ محفل کے اختتام تک اپنے جلوے بکھیر رہا ہوتا ہے اور کہے کہ اس صدقہ جاریہ کا ثواب جمال محسن سمیٹ رہے ہوتے ہیں. یہ تقریب امریکہ میں دائمی دھرنے کے سلسلے میں ہو رہی ہے تو کچھ اس حوالے سے بھی. جمال محسن 1978 میں امریکہ گئے. اس وقت بھی یہ بحیثیت کالم نگار پہچانے جا رہے تھے اور ان کی یہ پہچان آج بھی قائم ہے. ڈگری تو انہوں نے صحافت کی بھی لی، لیکن سیاسی صحافت سے اپنے آپ کو دور رکھا اور اس کی وجہ ان کی دور رس نگاہ تھی. وہ جانتے تھے کہ پاکستان کا صحافی اگر اپنے آپ کو آئے دن کے FIR سے بچانا چاہتا ہے تو لاٹھی ہر وقت اپنے ساتھ ہاتھ میں رکھے، لیکن سانپ کو مارنے یا زخمی کرنے کی کبھی کوشش نہ کرے. صرف سانپ کو مارنے کی اداکاری کرتا رہے. سانپ اگر غلطی سے بھی زخمی ہو گیا تو اس کی خیر نہیں. ہمارے جمال محسن نے اتنے باہمت تھے اور نہ اتنے عقل مند کہ سانپ اور لاٹھی کا یہ کھیل کامیابی سے کھیل پاتے، جبکہ اس ملک کے انگنت صحافی اس کھیل میں طاق ہو چکے ہیں. اتنے طاق کہ نہ اب تک سانپ زخمی ہوا ہے اور نہ لاٹھی ٹوٹی ہے، مگر ان کے نام سانپ سے جنگ کرنے والے مجاہدوں میں اب تک شامل ہیں. خاک راہ کو خاک شفا اور زہر کو تریاق بنانے کا ہنر اگر کسی کو سیکھنا ہو تو وہ ہمارے ملک کے صحافت کا بغور مطالعہ کرے. جمال محسن کے لیے زہر کو تریاق بنا کر بیچنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ان کا ضمیر اپنے خاندان اور اپنی تہذیب کے زیر اثر کل بھی تھا، آج بھی ہے اور شاید اور انشاءاللہ تعالی کل بھی رہے گا. یہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے ذہنی سرور حاصل کرنا چاہتے تھے، دولت نہیں. تو کالم نگاری، خاکہ اور غیر سیاسی صحافت کو اپنایا. اپنے ملک میں جب تک رہے ان کا قلم اس ملک کے روز و شب کی تصویریں بنا کر لوگوں کو دکھاتا رہا، اور جب یہ امریکہ پہنچے تو وہاں کی تصویریں بنا کر ہمیں دکھا رہے ہیں. ان کی فقاہیہ کالموں میں یہ تصویریں بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. یہ اپنے کالموں میں مزاح کے لہجے کو شوخ تو رکھتے ہیں، لیکن طنزیہ لہجہ ذرا دھیما ہوتا ہے، اور یہی صفت ان کو دوسرے کالم نگاروں سے الگ کرتا ہے. ان کے مزاج میں ایک خاص قسم کی شائستگی ہے جس کا پرتو ہمیں ان کے کالموں میں نظر آتا ہے. طنز و مزاح کو ہمارے ہاں سنجیدہ نہیں لیا جاتا. ہم عموماً سرسری طور پر اس سے گزر جاتے ہیں. میری نظر میں مزاح کی حیثیت دھوپ سے تپتے ہوئے صحرا میں گھنے سایہ دار شجر کی ہے، ایسے شجر کی جو تھکے ہوئے ذہنوں کو لمحہ راحت عطا کرتا ہے. مزاح کا ذہانت سے بڑا گہرا رشتہ ہے. ہر ذہین آدمی کے اندر ایک مسخرہ موجود ہوتا ہے. اگر وہ مسخرہ اس کی ذات میں نہ ہو تو آگہی کی اذیت اس کا جینا محال کر دے. حصے مزاح سے اپنے آپ کو جمال محسن کی طرح جوڑ کر رکھیے. جب خدا توفیق دے مل بیٹھیے لوگوں کے ساتھ، گاہے گاہے یہ عبادت با جماعت کیجیے. آج کی تقریب جو ہے میں ابھی سوچ رہا تھا کہ آرٹس کونسل کی تقریبات کے برخلاف ایسی تقریب تھی کہ جس میں کسی بھی مقرر کے لیے کو کہنا نہیں پڑا کہ بہت زیادہ ہو گیا. سب نے بہت اختصار سے کام لیا. حالانکہ آرٹس کونسل کی روایت ہے کہ وہ کسی کو بھی پورا مضمون پڑھنے نہیں دیتے یا پوری بات مکمل نہیں کرنے دیتے. میں تمام مہمانوں کا اور خاص طور سے جو مقررین تھے ہمارے، ان سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور اس تقریب کو کامیاب بنایا. کھانا حاضر ہے.